हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस एपिसोड 22। आज का एपिसोड काफी अलग होने वाला बाकी वाले एपिसोड से। अभी तक हम लोग डिस्कस करते आ रहे थे, जितना भी टॉपिक ऑलमोस्ट वेबिनार के इर्द गिर्द डिस्कस कर रहे थे कि वेबिनार फनल क्यों यूज करना चाहिए। तो कभी कभी लोग हम लोग से पूछते थे कि सर आप सिर्फ वेबिनार फनल का क्यों बताते हैं, बाकी फनल्स का क्यों नहीं बताते। तो आज आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, हम लोग एक नया फनल के बारे में बात करने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली आप लोग सुने भी होंगे उसको। हाई टिकट फनल कोई बोलता है, कोई बोलता है कंसल्टेशन फनल, एप्लीकेशन फनल, और कोई कोई वीएसएल फनल भी उसको बोलते हैं। तो आज हम लोग उसके बारे में इन डेप्थ बात करेंगे, पूरा ए टू जेड क्या होता है वीएसएल फनल, कंसल्टेशन फनल से वो क्यों डिफरेंट है। जो आप लोग जिसको वीएसएल फनल समझते थे वो एक्चुअल में वीएसएल फनल है ही नहीं, कुछ एक ऐसा भी हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो जो डिस्कस करेंगे फिर हम लोग बताते जाएंगे। तो हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, टू द पॉइंट। और अभी आप लोग डायरेक्ट चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। आई होप आप लोग बाकी एपिसोड्स भी देख रहे हो। तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और हम लोग चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। मैं हूं पंकज अग्रवाल और हमारे साथ हैं मनीष जी, इस चैनल के को होस्ट। ठीक है, हाय मनीष जी, कैसे हो आप? Hello, Pankaj, and hello, everybody. This is the episode 22nd of Coach I यस। Need Help, and I am very excited about this episode. So, yes, Pankaj, please continue. ठीक है। तो मनीष जी, हम लोग स्टार्टिंग में बताए थे लोगों को कि एक वीएसएल फनल होता है बहुत पॉपुलर इंडिया में। सब बोलते हैं कि वीएसएल फनल चलाओ, हाई टिकट बेचना है तो वीएसएल फनल चलाओ। और वीएसएल फनल, जिसको लोग वीएसएल फनल बोलते हैं एक्चुअल में, जो पॉपुलराइज हो चुका है। एक्चुअल में हम लोग कल बात कर रहे थे तो फिर हम खुद भी उसको वीएसएल फनल बोल रहे थे। फिर आप मुझे बोले कि हाँ ये एक्चुअल में वो, मैं रिलेट कर पाया कि नहीं नहीं सही बात है, वीएसएल फनल जिसको हम लोग वीएसएल फनल बोलते हैं वो एक्चुअल में वीएसएल फनल नहीं है, जिसको नहीं बोलते वो वीएसएल फनल है। तो काफी कंफ्यूजन है। तो एग्जैक्टली क्या है वीएसएल फनल, मतलब ओरिजिनल टर्म्स में उसको क्या बोलते हैं, क्या होता है, आप Correct. लोगों को एक्सप्लेन कर पाइएगा? So, the reason why we created this podcast is because the entire coaching industry is extremely new. It's still developing in India. However, a lot of the techniques that we are using have been very well and very strongly established in the international countries for many years now. So, VSL funnel was one of the oldest funnels in the online digital selling space. It is actually not even new for digital because it has been adapted from the offline space. Earlier there was this concept called as sales letter funnel, or direct mail order funnel. That was the actual term, direct mail order funnel. What would happen is, this is way back in 70s, 80s and 90s, people in US would get a lot of letters directly. So you've, let's say, gone to a shopping mall or a superstore and you've given them your address, and on, because your data would be sold to other marketing organizations, these marketing organizations would keep selling you a lot of mails directly to your house. So imagine the spam that you're getting on your email inbox, you're getting actual physical spam. Now what would happen, that spam, that envelope would reach your house and your job was to open that envelope, and then a marketer who had written a lot of copywriting material would try and sell a product to you, something that you are absolutely unaware of, and they would directly sell something to you. So that is the whole concept of mail order, direct mail order, or sales letter format of sales. That is where this whole industry started from in 60s, 70s, 90s in the US. Now when internet came up, sales letter moved from physical sales letter to online sales letter. When the penetration of internet grew and broadband came into the picture, the sales letter got converted to VSL, or video sales letter. That is the actual concept of VSL funnel, or a video sales letter funnel. Now, what it suggests is, show an enticing ad to your audience, get traffic to your landing page. On your landing page, create a very strong video sales letter. Now, what exactly is a video sales letter? It's anywhere between 5 minutes to 15 to 20 minutes, where a person will talk to you and try and explain to you an entire concept around one product. And they'll tell you, why is this product good for you? What are the benefits of using this product or buying this product? What are the kind of results you can expect once you start using this product? So on and so forth. Basically, they'll convince you to buy a product. And once you're convinced enough, you would swipe your card and immediately buy something through a video sales letter. Now, video sales letter internationally is being used for any offer products ranging anywhere from as little as
$2, which is not necessary, around $50 is an average minimum. $50 product to as high as $1,500, $2,500 products. I've actually seen video sales letters for a product which is being sold at $2,500. Now that's in India, that's equivalent of getting a bike or maybe like a small car, a second-hand car. Imagine buying a second-hand car by just watching a 15 to 20-minute video online. Would you do that? But there are many people internationally who are doing their sales through video sales letters, selling high ticket products. And because our country works in a different manner, our value systems are different, we are very difficult to please with regards to, it's very difficult to get money out of an Indian customer. So how that VSL product has gotten updated or how has it gotten adopted to Indian standards is what we are going to cover in this episode. But I hope you've at least understood what exactly is the VSL or the video sales letter funnel. And now let's talk about how has the VSL funnel been adapted to Indian standards. But before we go there, Pankaj, would you like to add anything else? Yes, हाँ, yes. तो बेसिकली आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं सब अच्छे से, बट मैं लोगों के लिए समराइज कर देता हूँ 2 लाइन में. हाँ, बेसिकली आप बताइएगा कि सेम ही चीज हो रहा है कि नहीं. हाँ, हाँ, कि पहले आप बता रहे थे कि पहले का जमाने में होता था कि लोगों के घर पे जो बाहर, मुझे अभी भी याद है कि पहले पोस्ट ऑफिस का वो रेड सा होता मेल था बॉक्स, डब्बा, हाँ, मेल बॉक्स, तो उसमें डालते थे वो सब आके चिट्ठी. और आज भी वो सब थोड़ा हद तक अभी भी चलता है, मतलब अगर प्रॉपर ऑफिस हो, शॉप हो, तो वो लोग ब्रोशर वगैरह लाके देते ही है उस तरह का चीज. तो जो आप डायरेक्ट सेल्स लेटर बोल रहे थे या फिर डायरेक्ट रिस्पांस मार्केटिंग जो कर रहे हैं, शायद डैन कैनेडी वगैरह इसमें पायनियर है, उन लोग के जमाने से चल रहा है. तो पर्पस इसका यही हो गया VSL का कि डायरेक्टली ऑफलाइन वाला छोड़ देते जो भी है वो तो आप एक्सप्लेन कर दिए. तो ऑनलाइन का पर्पस यही हो गया कि वेबसाइट पे आया, लैंडिंग पेज पे आया, और एक वीडियो दिखा के हाथों हाथ उस प्रोडक्ट को वहीं पे ऑनलाइन चेकआउट करवा दे रहा है, और बीच में कोई ऐसा कुछ नहीं कि बाद में खरीदी, ये नहीं. इट्स जस्ट लाइक जो अभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं हम लोग अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट वगैरह पे, सेम तरीका से आप जाता है लोग और वहाँ पे प्रोडक्ट्स खरीद लेता है. और हमारे केस में जनरली वो डिजिटल प्रोडक्ट्स हो गया, कोर्सेज हो गया, ई बुक्स हो गया, जाता है और खरीदता है. और आई एम श्योर ऑडियंस में बहुत लोग, आप लोग डायरेक्ट बाय किए भी होंगे, $100, $200, $500 का भी आप लोग प्रोडक्ट मेंबरशिप्स वगैरह डायरेक्टली बाय किए होंगे. मोस्टली इंटरनेशनल पीपल से, इंडिया में बहुत कम लोग ऐसे डायरेक्ट फनल चलाते हैं. तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे आगे कि ये इंडिया में क्यों नहीं बहुत अच्छे से चलता है. तो जैसा कि मनीष जी बता रहे थे, एग्जांपल लिए 2 लाख रुपए का कार का था, तो मतलब हमको लग रहा है कि हो सकता है, पता नहीं, बट मुझे भी लग रहा है, अग्री कर रहे कि नहीं, 99% लोग डायरेक्टली नहीं बाय करेंगे कि अगर कार का ऐड देखे डायरेक्टली बाय कर लिए. वो तो 4 बार 5 बार डिसीजन लेते हैं, फिजिकली बुलाते हैं, फिर बात करते हैं, बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है. तो बेसिकली शायद वो इनकम का लेवल के हिसाब से हो जाता है ना, कि यूएस में इनकम लोगों का ज्यादा रहता है और इंडिया में इनकम में भी कम रहता है लोगों का, काइंड ऑफ जो मैक्सिमम लोग जॉब कर रहे हैं, सैलरीड पीपल है, क्योंकि मैक्सिमम लोग वही है. तो फिर वो लोग अगर मान लेते 1 लाख 2 लाख कमा रहे हैं, तो वो 2 लाख का खुद का प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीद नहीं पाएंगे ना डायरेक्ट. हम लोग इजीली क्या खरीद लेते हैं, आम आदमी जो खरीदता है मे बी 1000 2000 3000 तक का भी प्रोडक्ट आसानी से खरीद लेते हैं ऑनलाइन. बट वहां पे लोग कमा ही ज्यादा रहे तो ज्यादा खरीदता है. तो क्या मनीष जी ये सही हो रहा है, बोलना होगा क्या कि इनकम के हिसाब से ही ये ऐड काम करता है? बाहर ज्यादा इनकम है तो जल्दी बिक जाता है, इंडिया में वो सिस्टम हमारे लिए इसलिए बहुत अच्छे से नहीं काम कर सकता है. हम लोग 2 लाख का तो छोड़ दीजिए, यूजुअली 25 30 50 हजार का भी प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं खरीदते. हाँ, ई कॉमर्स में एक्सेप्शन है, क्योंकि जैसे अगर हम लोग बात करेंगे अमेजोन में जाकर रेफ्रिजरेटर खरीदना है या फिर एसी खरीदना है, वहां पे हम लोग खरीद लेंगे 50 60 हजार का. लैपटॉप खरीदते हैं ना हम लोग डायरेक्ट, मोबाइल खरीदते हैं डायरेक्ट बिना कुछ समझे. बट तो ये क्या क्या मतलब कैसे इसको क्लासिफाई करेंगे, मतलब मनीष जी, कि फ्रिज वगैरह हम लोग खरीद लेते, लैपटॉप खरीद लेते 2 लाख का डायरेक्ट, बट कोर्सेज नहीं खरीदते, तो ये डिफरेंसेस कहाँ पे आ रहे हैं? क्यों आप ये टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि इंडिया में नहीं काम करता है? कैसे कनेक्ट करेंगे इसको हम लोग? इसका आपने बराबर बताया कि इनकम एक कारण है, लेकिन इनकम इज नॉट द ओनली रीजन. द एक्चुअल रीजन इज कंज्यूमर बिहेवियर. अब क्या होता है कि हर कंट्री में एक किसी चीज को अडेप्ट करने को, अडॉप्ट करने को, अडेप्ट और अडॉप्ट दोनों अलग अलग चीज है. अडेप्शन इज ठीक है, वी नाउ वेरी स्ट्रांगली अडेप्टेड टू अ cashless economy or less cash economy, the way I look at it. Or we've also adapted to
a hybrid model of buying something online and buying something offline. हर इंसान का एक अलग अलग स्टैंडर्ड होगा. कितने लोग होते हैं जो कपड़े ऑनलाइन नहीं खरीदते हैं क्योंकि वो बोलते हैं मुझे कपड़े को टच फील करना है, ट्राई करके देखना है, तो मैं कपड़े ऑनलाइन नहीं खरीदता हूँ. मुझे जूते खरीदना पसंद नहीं है ऑनलाइन, मुझे वॉचेस खरीदना पसंद नहीं है ऑनलाइन. ये पर्सनल प्रेफरेंसेस है, लेकिन हम लोग एक हाइब्रिड मॉडल को अडेप्ट कर चुके हैं. और दूसरा है ओवरऑल अडॉप्शन. नाउ अडॉप्शन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, अडॉप्शन ऑफ द ई कॉमर्स इंडस्ट्री एज अ होल, वो अभी तक अगर आप देखोगे तो हमारे कंट्री में बहुत लो है. अब हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अपने हिसाब से सब कुछ मैनेज कर लेते हैं. वी आर यूजिंग लैपटॉप्स एंड वी आर यूजिंग स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स, बट आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट पीपल इन आवर ऑडियंस वुड एटलीस्ट हैव अ पेरेंट और somebody in their house or somebody in their known vicinity जिनके पास एक स्मार्टफोन भी शायद ना हो. अगर है भी तो उन्होंने आज तक खुद अपने बलबूते पे कोई भी एक ऑनलाइन परचेज नहीं खरीदा. मेरे घर पे ही जितनी भी चीजें होती है ऑनलाइन खरीदने के लिए, मेरे डैड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक लिंक भेज देते हैं और हमको वो चीजें ऑर्डर करवानी पड़ती है. तो ये हर कंट्री का, हर मार्केट का एक अलग अडॉप्शन प्रोसेस भी होता है. हमारी कंट्री अब तक उस अडॉप्शन प्रोसेस तक नहीं आई है. एंड जहां जहां पर आ गई है, जैसे आपने क्लियरली बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने के लिए अब हमें डर नहीं लगता. क्यों? क्योंकि आज ई कॉमर्स को भी इस कंट्री में एग्जिस्ट करके अभी 10 साल के ऊपर हो गया. आपने भी बहुत परचेजेस कर लिए और आपको एक ट्रस्ट बैठ गया है अमेजोन के ऊपर या एक पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर या फ्लिपकार्ट के ऊपर, जो भी डिपेंड करता है आप जहां से ऑर्डर कर रहे हो. लेकिन सपोज पंकज, मैं आपसे ही बात करता हूं, आप ऑनलाइन बहुत सारी चीजें खरीदते हो. सपोज आज अगर मैं आपको एकदम ब्रांड न्यू वेबसाइट खोल के दे दूं जिसके बारे में आपने आज तक कभी नहीं सुना, ठीक है, manishbazaar.com, और उसके ऊपर मैं अगर आपको एक आईफोन 15,000 के डिस्काउंट पे बेचूं, तो क्या आप कॉन्फिडेंटली खरीद लोगे? आप 15,000 का डिस्काउंट छोड़ दीजिए, 15,000 पे बेचोगे तब भी नहीं खरीदेंगे. समझ रहे हो आप? ये इमीडिएट एक साइकोलॉजी आ जाती है. भले आज की तारीख में सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको पता है कि यही सेम प्रोडक्ट आपको बिग बिलियन डे में या कोई दूसरे वेबसाइट के सेल्स के ऑफर में आपको वही 15,000 के डिस्काउंट पे मिल सकता है. तो हो सकता है मनीष बाजार भी एक वेबसाइट है जो नया है और एक नया कस्टमर बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए 15,000 में दे रहा है, लेकिन आप नहीं खरीदोगे. हाँ, क्योंकि मुझे पुराने वेबसाइट्स पे ट्रस्ट है, क्योंकि मुझे फ्लिपकार्ट या अमेजोन है तो मुझे पता है कि कुछ भी होगा तो वो लोग का जिम्मेदारी है, वो वापस कर देगा पैसा, डिलीवरी का हेडेक उनका है, सब कुछ वो हैंडल कर लेंगे. करेक्ट. बट मनीष बाजार पे हम बाय कर लिए, उसके बाद से वो रिस्पॉन्स भी दे ना दे वो भी मुझे पता नहीं आज के डेट पे. करेक्ट. तो इन्हीं सारी चीजों को कवर करने के लिए एक पूरे इकोसिस्टम को बनना जरूरी है. एक पूरा लोगों का थॉट प्रोसेस बदलना जरूरी है. आज अगर हम कितनी चीजों को जो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते, एक 5,000 का जूता 15 साल पहले हम शायद नहीं खरीदते, आज 5,000 का जूता कॉमन सी चीज हो गई है. ठीक है ना? चलो ठीक है, आप बोलोगे 5,000 10 साल पहले उसकी वैल्यू 5,000 की आज से बहुत ज्यादा थी, तो ठीक है उसको 10,000 कर लो, 15,000 कर लो. आज अगर 15,000 का भी कोई जूता खरीदता है तो लोगों की आंखें बड़ी नहीं होती है. वैसा है, आज लोग 1.5 लाख के फोन्स खरीद रहे हैं. आज 4-5 लाख रुपए के लैपटॉप्स कोई बड़ी बात नहीं है इफ यू आर अ डिजाइनर और इफ यू आर समबडी हु इज वर्किंग इन द मीडिया इंडस्ट्री. आज लोग 25-30 हजार रुपए के ईयरफोन्स खरीद लेते हैं, वायरलेस ईयरफोन्स. तो चश्मा खरीद इकोनॉमी, लेते 15,000 का. चश्मा खरीद लेते हैं, एग्जैक्टली. तो इकोनॉमी बदल रही है, सोसाइटी बदल रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, ब्रांड्स का और अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो ये चलता रहेगा. दैट्स जस्ट, वी आर इन द ट्रांजिशन फेज. और ऐसे में अगर आप ट्रांजिशन कर रहे हो तो किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ तो पायोनियर करना पड़ेगा. तो इंडिया में वीएसएल फनल को पायोनियर करने के लिए लोगों ने ट्राई किया कि चलो ठीक है हम भी एक प्रोडक्ट बना लेते हैं ऑनलाइन और उसको बेचने की कोशिश करते हैं. नहीं बिक रहा था, इसके लिए लोगों ने उसको थोड़ा अडॉप्ट किया है और उसको थोड़ा चेंज किया है. तो उस इसलिए हमारे कंट्री में एक्चुअली वीएसएल फनल इतना पॉपुलर नहीं है. हमारी कंट्री में जो एक्चुअली एक फनल है जो हमने हाइब्रिड तरीके से बनाया हुआ है या हमने ज्यादा इजीली अडॉप्ट किया है, विच इज कॉल्ड द कंसल्टेशन फनल. अब कंसल्टेशन फनल में क्या होता है, पंकज आप बताना चाहेंगे क्योंकि आपने अपना पूरा बिजनेस कंसल्टेशन फनल पे बनाया, तो आप बताइए कंसल्टेशन यस. फनल के बारे में. हाँ, तो बेसिकली लोग मतलब इंडिया में हर कोई लोग वीएसएल फनल बोलता है इसको, हम भी लोगों को समझाने के लिए वीएसएल फनल ही बोलते थे क्योंकि ये मोस्ट कॉमन वर्ड हो गया. बट यहाँ पे हम लोग क्लियर कर दे रहे कि वीएसएल फनल का मतलब जनरली हो गया कि लोग डायरेक्टली ऑनलाइन जा रहे, वीडियो देख रहे और वहीं से हाथों हाथ खरीद ले रहे. वीडियो सेल्स लेटर नाम ही उसका था.
बट अभी लोग शायद वीएसएल फनल उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां से भी हम लोग सेल्स करना चाह रहे हैं, उस वीडियो से भी सेल्स करना चाह रहे हैं, बट सेल्स इन नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट, बट सेल्स इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। तो होता क्या है इस कंसल्ट वीएसएल फनल, या जो हम लोग कंसल्टेशन फनल एक्चुअल में बोलते हैं, तो अब से इस टॉपिक के बाद से अभी जितना भी हम लोग बात करेंगे, चाहे हम वीएसएल बोले, चाहे कंसल्टेशन बोले, चाहे एप्लीकेशन फनल बोले, आप लोग समझ जाना हम लोग कंसल्टेशन फनल के बारे में ही बात करने वाले। तो होता क्या है इस फनल में, या फिर लोग हाई टिकट फनल भी बोलते हैं इसको, बहुत नाम से जो मन नाम बोल लो, बट चीज अंदर एक ही होता है। चीज होता है कि ऐड देखकर लोगों जाते हैं वहां पे। ऐड वन ऑफ द एग्जांपल हो गया, हो सकता है रेफरल से भेज दे, सोशल मीडिया कंटेंट से भेज दे, बट कोई भी ट्रैफिक सोर्स है, ट्रैफिक सोर्स से वो जाता है आपके एक ऑप्ट इन पेज पे। एक छोटा सा पेज रहता है जहाँ पे आप बोलते हो कि डू यू वांट टू वॉच, कुछ एक ट्रेनिंग देते हो, लाइक 15-20 मिनट का ट्रेनिंग रहता है किसी टॉपिक पे, फॉर एग्जांपल हाउ टू बिकम अ हाई टिकट कोच, एक टॉपिक हो गया। तो हम ऐड चलाएंगे फेसबुक पे या फिर कहीं पे भी कि हाउ टू बिकम अ हाई टिकट कोच, आई हैव रिकॉर्डेड 30 मिनट्स ट्रेनिंग ऑन दिस, इफ यू वांट चेक आउट माई लैंडिंग पेज। तो लोग ऐड क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद वो जाएगा मेरे एक पहले लैंडिंग पेज पे, जिसको हम लोग ऑप्ट इन पेज बोलते हैं। तो ऑप्ट इन पेज पे क्या होगा, वो टॉपिक का हेडिंग लिखा रहेगा और लिखा रहेगा कि अगर आपको ये ट्रेनिंग देखना है तो आप ये डिटेल्स फिल करो। एक छोटा सा फॉर्म रहता है जिसमें टिपिकली हम लोग नाम, ईमेल, फोन नंबर लेते हैं। बाहर के देशों में खाली नाम ईमेल लेते हैं, यहाँ पे इंडिया में हम लोग फोन नंबर भी ले लेते हैं, क्योंकि फोन नंबर पे मैसेज भेजने में अच्छा लगता है हम लोग को व्हाट्सएप पे। तो क्या, ठीक है। तो नाम, ईमेल, फोन नंबर लिए, वो फॉर्म भरा, फिर सेकंड पेज पे गया। सेकंड लैंडिंग पेज क्या रहता है, वहां पे उसका एक्चुअली 20 मिनट का वीडियो रहता है, 20-30 जितना मिनट भी रहे, कोई 5 मिनट रहता है, बट ऑन एवरेज मान लीजिए कि कुछ एक छोटा सा वीडियो रहता है जो इजिली वन को में कंप्लीट कर सके। वहां पे हम लोग अपने टॉपिक, फॉर एग्जांपल हाई टिकट टू हाउ टू बिकम हाई टिकट कोच, इसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो डाल दिया। पूरा वहां पे डिटेल्स में जो समझाना है उसके बारे में कि क्या होता है, क्यों होता है, वो सब आगे डिस्कस करेंगे, बट उस टॉपिक के ऊपर हम लोगों को 20 मिनट का ट्रेनिंग दे दिया। या फिर कुछ एक जो भी हम सेल्स करना चाह रहे हैं, मतलब हमारा एम क्या है उस वीडियो से, कि लोगों को एडुकेट करो, और एडुकेट करने के बाद उनको बोलेंगे थर्ड स्टेप पे जाओ, कि डू यू वांट टू लर्न मोर अबाउट दिस टॉपिक, डू यू वांट टू नो हाउ आई कैन हेल्प यू इन दिस बिजनेस। कुछ ऐसा हम लोग पूछेंगे कि अगर हाँ आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप हमारे साथ एक कॉल बुक कर सकते हो, और बीच में हम लोग कैलेंडर दे देंगे उसको कि ये रहा, टाइमिंग वगैरह सेलेक्ट कर लो, और वो हमारे साथ कॉल बुक कर लेगा। और कॉल बुक करने के बाद वो जाएगा यहाँ पे, क्या बोलते हैं, थैंक यू पेज पे, थैंक्स फॉर बुकिंग द कॉल, वी विल गेट इन टच विथ यू शॉर्टली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली टोटल पर्पस अगर सम अप करोगे तो यही है कि एक वीडियो दिखाकर हम लोग उससे अपॉइंटमेंट जनरेट करवा रहे हैं, ताकि उससे 1-to-1 हम लोग बात करके अपना प्रोडक्ट बेच सके। तो कुछ हम मिस किए क्या मनीष जी यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन नहीं करते नहीं, समय? this is exactly how India has adopted to this. Instead of directly making a sale after showing your audience a 15 to 20 minute video, you are telling them that, see, I am somebody who you can trust. I am हम्म। somebody who can give you value and I understand your pain. So do one thing, instead of just taking a chance on me and swiping your card, come and meet me for a 15 to 30 minute free meeting, or maybe even a paid consultation. Let's talk. Let me show you how I can help you better. Let me understand your problem even more, because maybe you want to know for sure whether I understand all aspects of your pain. And then let me tell you how can I, my product, my service, my company, my team, my management, my brand, my business can help you solve the problem. So let's यस। talk, let's connect, and let's take it forward one step at a time. So that's what a consultation funnel now looks like in India. So we have जुगाड़ू तो हम है ही इंडियंस, हमने वीएसएल फनल को भी उसको थोड़ा सा ट्वीक करके हमने उसको हाई टिकट फनल बना लिया, हमने उस कंसल्टेशन फनल बना लिया, लेकिन हमने कन्वीनियंटली नाम चेंज नहीं किया। हम आज तक उसको बुलाते हुए वीएसएल फनल लिया, लेकिन है वो एक्चुअली कंसल्टेशन फनल। यस, एंड ये फनल सिर्फ इंडिया में नहीं है, ऑफ कोर्स ये पूरा वर्ल्ड वाइड ये पॉपुलर है, एप्लीकेशन कंसल्टेशन फनल। फनल हैज ऑलवेज बीन पॉपुलर। हमेशा से, जब से इंटरनेट नहीं था तब से भी हर नहीं नहीं, फील्ड में। थोड़े सालों से, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हो रहा था ना, देखिए, जैसे मैंने बोला, अडेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले क्या होता था, कोई भी मार्केटियर क्या करेगा, जो पर्टिकुलर एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उसके लिए काम कर रही है, उसके 3 कस्टमर्स के लिए काम कर रही है ना, वही स्ट्रेटेजी वो हर इंसान को दे देगा, बोलेगा तुम भी ये ट्राई करो, तुम भी ये ट्राई करो। लेकिन अभी इमेजिन कीजिए, एक डॉक्टर को वीएसएल शायद ही ढंग से काम करे, एक डेंटिस्ट के लिए शायद ही वीएसएल ढंग से काम करे, तो वहां पे उनको समझ में आया कि नहीं, कितने बिजनेसेस ऐसे हैं जहां पे डायरेक्ट वीएसएल सेल करना गलत होगा,
या बिजनेस या ब्रांड के लिए अच्छा नहीं होगा, या अगर हुआ भी तो एक कंसल्टेशन अपना एक कोचिंग प्रोग्राम के लिए हो सकता है आपको 30% का कन्वर्जन रेशियो मिले, और हो सकता है कि आपको कंसल्टेशन वाला जो बिजनेस है उसके लिए आपको हो सकता है सिर्फ 3% कन्वर्जन मिले। तो उसके हिसाब से अडेप्ट कर करके कंसल्टेशन फनल हैज, as much as I know, has been around for the last 10-15 years in the international countries. हाँ, It's तो still 10-15 इयर्स तो बहुत ही हो गया ना, मतलब वो कहने का मतलब। उस मार्केट के लिए काफी मैच्योर है। यस। हाँ हाँ, इंडिया में हालांकि नया आया है, बट मैं हाँ कहने का मतलब है कि ये ऑलमोस्ट अभी VSL फनल या कंसल्टेशन फनल के नाम से हम लोग यूज कर रहे हैं, बट कहने का मतलब ये हमेशा से लोग यूज करते ही थे ऑफलाइन। अगर करेक्ट करेक्ट। हर जगह हम लोग फिजिकल एग्जांपल लेते हैं, हाँ तो जैसे अगर डॉक्टर का एग्जांपल ले रहे हैं, तो हाँ ऑनलाइन वाला चीज हटा देते हैं, बट वो भी एक फनल के थ्रू ही लोगों को ले जाते हैं। वो लोगों से अपॉइंटमेंट लेते हैं। लॉयर रहता है तो अपॉइंटमेंट लेता है, डेंटिस्ट रहेगा तो अपॉइंटमेंट लेता है। पूरा दुनिया अपॉइंटमेंट लेके ही काम करता है। मतलब ये फनल ऑलरेडी यूज हो रहा था पूरा दुनिया में पहले से। एवरी बिजनेस इज अ फनल बिजनेस, एवरी। तो हम्म, उस हिसाब से हाँ। तो ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है कि इस कंसल्टेशन कॉल एप्लीकेबल ओनली इन इंडिया। ये शायद हम लोग डिस्कस किया यही चीज ना अभी। हाउ डज एप्लीकेशन कंसल्टेशन फनल वर्क इन इंडिया? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। अब हम इसके लोग बारे में बात कर ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में ना, कि नहीं, ये जो हमने एक पॉइंट अभी मतलब ऊपर ऊपर से बात की, कंसल्टेशन कॉल एप्लीकेबल ओनली इन इंडिया, नहीं, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। हाँ, हर बिजनेस के हिसाब से देयर आर मल्टीपल। ओके, हम्म, देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस। If you have a high ticket product, if you have a physical product which is very big, now हम्म, what does a very big product mean? Something that is not going to fit in one room. Let's say if you are selling a car, let's say if you are selling some sort of a piano, let's say if you are selling some sort of a product रियल which एस्टेट। is real estate, obviously. पूरा घर एक रूम में फिट नहीं होता हाँ है। करेक्ट। तो वैसे प्रोडक्ट्स के लिए जनरली VSL फनल्स या कंसल्टेशन कॉल फनल्स डू नॉट हेल्प। उधर थोड़ा सा चेंज होके वो क्या हो जाता है, एक मीटिंग फनल बन जाता है कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, इंटरनेशनल कंट्रीज की बात कर रहा हूं मैं। आप हम्म, एक काम कीजिए, आप हमारा ये वीडियो देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि हम एग्जैक्टली क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। उसको अगर आपको खरीदने में इंटरेस्ट है तो हमारे साथ एक मीटिंग बुक कर लीजिए, या तो हमारे शोरूम के लिए एक मीटिंग बुक कर लीजिए और आ जाइए और हम आपको समझा देंगे। एक और बहुत बड़ा कैटेगरी है इंटरनेशनल कंट्रीज में। इंटरनेशनल कंट्रीज में ह्यूमन टाइम इज वेरी एक्सपेंसिव। सो लेट्स से इफ आई एम रनिंग अ बिजनेस ऑफ रूफिंग, रूफिंग इज अ वेरी बिग बिजनेस इंटरनेशनली, जहां पे आपके जो इंडिपेंडेंट घर होते हैं उसकी रूफ में आपको कभी कोई वाटर प्रूफिंग करनी पड़ती है, या कोई क्लीनिंग करना पड़ता है, या आपका गराज क्लीनिंग हो गया, या आपका क्या बोलते हैं लैंडस्केपिंग हो गया। ये सारी जो कंपनीज हैं, दीज आर कॉल्ड बोरिंग बिजनेसेस इंटरनेशनली। ये सारे जो बिजनेसेस हैं, इसमें जो भी वैल्यू है आपके टाइम की वैल्यू है, बिजनेस ओनर के टाइम की वैल्यू। तो अगर मैं आपके घर पे आऊं और आपको पूरा पिच करूं, वही पिच को बार बार रिपीट करूं, तो मेरा टाइम बहुत जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो एक VSL फनल बना लेते हैं कि आप एक वीडियो देख लीजिए, आप मेरे कंपनी के बारे में, मेरे बारे में, मेरी सर्विसेज के बारे में, मेरे पास्ट कस्टमर एक्सपीरियंसेस के बारे में, मेरे टेस्टिमोनियल्स के बारे में, आप सब कुछ देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको मेरी सर्विसेज में इंटरेस्ट है, तो मुझे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दीजिए, फिर ही मैं आके आपको मिलूंगा। क्योंकि वो मार्केट्स इतने मैच्योर हो गए हैं कि वो जब तक एक बहुत प्रोमिनेंट कस्टमर के बारे में उनको पता नहीं चलता, तब तक वो टाइम देना ही नहीं चाहते। और मुझे लग रहा है वो भी आज की तारीख में हम इंडिया में भी ये कर ही रहे हैं। आई नो सो मेनी कोचेस, पंकज भी उसमें अपने आप में एक ऐसे ही कंसल्टेंट है। ही विल नॉट कनेक्ट विथ यू अनलेस एंड अनटिल यू सीन हिज कंटेंट। ही विल नॉट गिव यू हिज टाइम अनलेस ही नोज दैट यू आर सीरियस अबाउट व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज यू आर लुकिंग फॉर। बिकॉज हमको जब तक हम अपने टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे, तब तक आपके टाइम की वैल्यू कोई और भी नहीं करेगा। बिल्कुल। तो वही है। तो internationally be depending on what product are you selling, what service you are selling, what is the ticket price, what exactly is the nature of your product, people go from VSL funnel to consultation funnel to appointment booking funnel, ये सब चलता रहता है। बट ये पूरा यूनिवर्स एक ही है। जो भी है, हम्म, आप एक एड देखो, लैंडिंग पेज पे आओ, लैंडिंग पेज पे एक छोटा सा वीडियो देखो, उस वीडियो पे आपको कुछ समझ में आए, एंड उसके हिसाब से यू ईदर बाय और एटलीस्ट शो योर इंटेंशन टू बाय। यस, चाहे वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले रहे चाहे फिर चाहे ऑफलाइन अपॉइंटमेंट ले रहे, लेकिन वीडियो देखकर एक मीटिंग बुक करना है, कैसे भी करेक्ट कर ले। जूम करेक्ट मीटिंग या ऑफलाइन मीटिंग।
करेक्ट। इनफैक्ट पहले तो ऑफलाइन ही मीटिंग होता था ना, जूम मीटिंग तो अभी आया है ना। हाँ मतलब मुझे पता है कि मैं जूम पैंडेमिक के 6-7 साल पहले से यूज कर रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे तो पता ही नहीं था। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत पहले से यूज कर रहा हूँ मैं जूम। ओके, ठीक है। हाँ। उससे पहले शायद हम लोग गूगल मीट वगैरह यूज करते थे, मतलब मैं नहीं नहीं, गूगल पर्सनली। मीट जूम के बाद आया है। गूगल मीट, as much as I know, was introduced very prominently during the pandemic. It was a product that was available, but then Google started taking it more seriously during the pandemic. हाँ, तो वो अपोजिट हो रहा है, जैसे आप पहले जूम यूज करते थे ना, उसी तरह से सबसे हम पहले पहले। स्काइप था। सबसे पहले मतलब मैंने स्काइप पे भी हम्म, मीटिंग अटेंड की है। हम स्काइप पे हम भी किए उस समय, मतलब उस समय हम करते थे वेब डेवलपमेंट, फ्रीलांसिंग वगैरह। हाँ, तो स्काइप मीटिंग सबसे पहले हुआ करती थी इंटरनेशनल कंट्रीज के लिए और बिजनेसेस के लिए। इसके लिए फिर स्काइप ने अपने एक दूसरा प्रोडक्ट निकाला था, स्काइप फॉर बिजनेस। अगर आप मिलेनियल हैं या जेन जी हैं तो आपको शायद पता भी ना हो कि स्काइप नाम का एक ऐप हुआ करता था। किसी जमाने में मेरा फेवरेट हुआ करता था, बहुत एक्चुअली रोबस्ट था। माइक्रोसॉफ्ट ने उसको खरीद लिया और फिर किसी और एपिसोड में उसके बारे में बात करेंगे। बट हाँ, this my entire introduction of meeting a stranger online and connecting with them to learn from them or to pitch something to them started with Skype. गूगल हैंगआउट होता था ना शायद गूगल मीट से पहले। Google Hangout was for your regular G Talk होता था जो Google Hangouts बन गया। हाँ, पहले बाहर होता था, बस उसी के अंदर जीमेल में ही आने लग गया अब। करेक्ट करेक्ट। एंड Google Talk was one of the oldest, मतलब सबसे पहले तो अगर ये इस डायरेक्शन में जाए तो फिर तो अलग कहानी है, बिकॉज थिंग स्टार्टेड विद MSN मैसेंजर, याहू याहू मैसेंजर, मैसेंजर, निम्बस। ICQ. निम्बस करके भी एक चैटिंग एप्लीकेशन ICQ, होता था। Nimbus ICQ was the same, and then from ICQ you then moved to Google Talk, then Google Talk became Google Hangouts, so on and so forth. और अभी चल रहा है जूम, हाँ मोस्ट पॉपुलर है। हाँ ठीक है। चलिए अब वापस आते हैं इस पे। हाँ। तो बेसिकली अब हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया में, अब इंटरनेशनल के बारे में, इंडिया के बारे में तो हम लोग ट्रांजिशन कर लिए, अब सारा कुछ अब हम लोग इंडियन अब जो भी कॉन्टेक्स्ट बात पे। करेंगे हम VSL funnel या consultation funnel, predominantly consultation funnel, how does it work in India and so on and so forth. यस, हम्म। ठीक है। तो बात ये आता है कि खास करके कोचिंग इंडस्ट्री में या डिजिटल कोचेस या कंसल्टेंट है जो भी, तो उस मॉडल के लिए हम लोग बात करें तो कि किस किस प्राइसिंग पे हम लोग को कौन कौन सा फनल यूज करना चाहिए, या फिर किस प्राइसिंग पे हम लोग को ये कंसल्टेशन फनल यूज करना चाहिए या फिर नहीं यूज करना चाहिए। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 रुपए का बॉटल यूज कोई बेच रहा है फिजिकल प्रोडक्ट, तो ऑफ कोर्स वहां पे तो नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि बॉटल खरीदने के लिए 100-200 रुपया 400 रुपया का तो डायरेक्टली खरीद लेगा आज भी। 1000 रुपये का तक भी प्रोडक्ट है तो ऑनलाइन तुरंत फटाफट इंडिया में भी आराम से हम लोग खरीदते हैं, कोर्सेज रहता है बहुत सारे वेबसाइट्स पे, तो हम लोग फटाफट जाके खरीदते हैं। हम्म। और 5-10 हजार का कुछ कोर्सेज रहता है तो लोग उसको वेबिनार पे भेज देते हैं, हम्म। डायरेक्टली एक लाइव वेबिनार करते हैं, क्योंकि 5-10 हजार का कोर्सेज बिना वेबिनार का बेचना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इंडिया में बहुत। मतलब कोचेज आते हैं मेरे पास ये ट्राई करने कि 2,000 का कोर्स रिकॉर्ड किए, 5,000 का कोर्स रिकॉर्ड किए, बेच दे क्या, डायरेक्टली बिक जाएगा क्या, वो तो बेच रहे, वो कोच बेच रहे, ये बेच रहा है। तो हम बोले कि जो बेच रहा है उनका ब्रांड देखो, उनका यूट्यूब में मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है। तो लोग इसलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि उनको टाइम मैनेजमेंट का कोर्स खरीदना है, लोग इसलिए खरीद रहे क्योंकि वो उनको जानते हैं, उनका ब्रांड से रेजोनेट करेक्ट करते हैं। अब मुझे इनका प्रोडक्ट खरीदना है, उनको टाइम करेक्ट मैनेजमेंट से कम मतलब है, उनको इनसे ज्यादा मतलब है, क्योंकि वो ब्रांड बन चुके हैं कि हाँ मैं इनका फैन हूँ तो इसलिए मैं वो खरीदना चाहता हूँ। तो करेक्ट। वो डायरेक्टली नहीं बेचना है, पहली बात तो बीएसएल पैनल में हम बाद में आएंगे। पहले की 5,000-6,000 का ही प्रोडक्ट है तो आपको वेबिनार के थ्रू ही बेचना है। कब तक बेचना है? लगभग 10,000, 12,000, 15,000 तक का प्रोडक्ट मैक्सिमम आप वेबिनार के थ्रू इजीली बेच सकते हो। एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स होते हैं हर जगह, उसका नहीं बात कर रहे हैं। 15,000, 10,000, 15,000 तक का रेंज में जो भी प्रोडक्ट है आप वेबिनार के थ्रू बेच दो। बट अगर 15,000 से ऊपर का कोई प्रोडक्ट है, स्पेशली खास करके 30 से 50,000 के बीच का अगर प्रोडक्ट है, तो आप इस फनल के थ्रू जाओ, कंसल्टेशन फनल में। मतलब डायरेक्टली उनको मत बोलो कि ये रहा पेमेंट लिंक पे कर दो, उनको आप बुलाओ एप्लीकेशन फनल पे, बोलो कि एप्लीकेशन फिल करो। एक वेबिनार पे जाके आप उनको मे भी इंट्रोडक्शन दे दिए, या फिर जो वीएसएल फनल एक ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद इंट्रोडक्शन दे दीजिए उनको अपने प्रोडक्ट का कि ये प्रोडक्ट है, ऐसा काम करता है, जैसे भी इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्रोडक्ट के बारे में। अब उनको बोलिए कि आई नो ये 50,000 रुपया का प्रोडक्ट है, मतलब आप बोलेंगे नहीं बट मन में आप सोच के चलोगे कि ये महंगा प्रोडक्ट है इंडिया के लिए। या फिर कोर्सेज अगर बेच रहे हो, कंसल्टेशन बेच रहे हो 50,000 का, चाहे मंथली रिकरिंग हो चाहे वन टाइम हो,
बट 50,000 के आसपास बेच रहे हो तो फटाफट कोई एक बार में देने वाला है नहीं मैक्सिमम लोग। तो आप क्या करोगे, आप उनको बोलोगे कि ठीक है, आप मेरे साथ एक अपॉइंटमेंट बुक कर लो, जिसमें हम और आप मिलकर डिस्कस करेंगे 1-to-1 आपके मतलब यूज केस के बारे में, कि ये प्रोडक्ट जो पंकज बेच रहा है, हाउ टू बिकम अ हाई टिकट क्लाइंट फॉर एग्जांपल। तो ये, क्या आप हाई टिकट क्लाइंट बन सकते हो, आपको क्यों बनना चाहिए, सबके मन में कुछ कुछ क्वेश्चंस रहता है, तभी तो वो डायरेक्ट नहीं खरीदता है ना, नहीं तो डायरेक्ट खरीदने में उसको क्या दिक्कत है। 1,000 रुपए का प्रोडक्ट को डायरेक्ट खरीद लेगा क्योंकि वो सोचता है कि चलो एक्सप्लोर कर लेंगे। बट जब 50,000 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो उनको चाहिए कि एकदम वैल्यू, कि एग्जैक्टली exactly ये प्रोडक्ट मेरे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। बहुत सारा क्वेश्चंस होता है उसके मन में जो अभी उनको भी नहीं पता है, जो खरीदने वाला है। तो आपको उनको 1-to-1 कॉल पे बुलाना है, एप्लीकेशन भरवाना है, फिर उनको बेचने का कोशिश करना है कि ठीक है अब ये प्रोडक्ट है, यानी एक्सप्लेन करोगे, फिर जो भी ये सेल्स प्रोसेस चलता है। और अगर उससे ऊपर का प्रोडक्ट है तो ऑफ कोर्स वीएसएल करना ही करना है। मतलब कहने का मतलब, अगर 30 40 50 हजार से ऊपर का कुछ भी प्रोडक्ट है तो आपको वीएसएल करना है, 10 15 हजार से नीचे का है तो वेबिनार्स करना है। और बीच का प्राइसिंग अवॉइड ही करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा अगर डिजिटल प्रोडक्ट है तो। ठीक है, आपका कुछ टेक मनीष जी इसमें? नहीं, this is perfect. मतलब depending on the nature of your product, depending on the price of the product, and most importantly, depending on the brand that you've already built, यस। you need to decide how are you going to sell. So as Pankaj clearly suggested the pricing, let me just focus a little on the brand. I'll हम्म। give you the simplest example कि आपको पता चल जाए कि आपको ब्रांड, आपका ब्रांड कहाँ स्टैंड करता है मार्केट में। अगर आप घर से बाहर जा रहे हो, सपोज एक मॉल गए, रेस्टोरेंट गए, और अगर आपको कोई भी इंसान आके मिल नहीं रहा है, अगर आके आपको कोई भी इंसान बोल नहीं रहा है कि मैंने आपका ये वीडियो देखा हुआ है, आई नो यू फ्रॉम समवेयर, आप ब्रांड नहीं हो। ठीक है अच्छा ना? एग्जांपल है। हाँ, सिंपल चीज है, क्योंकि आज की तारीख में मतलब लिटरली ये मैंने देखा हुआ है, लोगों के पास 20 25 30 50 हजार लोगों की फॉलोइंग है, सब ऑर्गेनिक है, लेकिन उनको कोई नहीं पहचानता है। एंड दैट्स अ गुड, एज इन डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट इट, आई लुक एट इट टू बी एज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है ना? तो खुद को है ना अपने दिमाग में इतना बड़ा मत करो। जब तक तुम्हारा नीश, आज आज एक सिंपल चीज मैं बता देता हूँ, राज शमानी बोलता हूँ तो आपके दिमाग में एक शक्ल आ जाती है, आपको उसका बात करने का तरीका समझ में आ जाता है। अंकुर वारी को बोलता हूँ तो आपके दिमाग में वो शक्ल आ जाती है। संदीप महेश्वरी बोलता हूँ तो आपके दिमाग में एक शक्ल आ जाती है। ठीक है? मैं शक्ल क्या, आपको, संदीप महेश्वरी के नाम से तो मोटिवेशन आ जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, सिर्फ नाम सुन के देखिए इम्पैक्ट हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, पंकज क्या आपको इसके बारे में पता है, ज्ञान थेरेपी? नहीं। मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है भाई साहब के यूट्यूब पे, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर है। आपको नहीं पता उसके बारे में? ठीक है? कॉलिन एंड समीर के बारे में पता है आपको? अगेन, दीज आर बेस्ड आउट ऑफ यूएस, बट दे स्टिल हैव मोर देन 1 million फॉलोअर्स। So unless and until you know for a fact that you cannot go to a place without getting recognized, you are not a brand. So please stop comparing yourself to people who've already been well established. And Ankur Wariko did not start selling his automated products until he reached a particular place. एक साल पहले तक वो automated programs नहीं बेच रहा था। बिल्कुल। तो फिर अगर उसको इतना टाइम लग गया, पैंडेमिक से बैठ के भाई साहब हफ्ते के 3 वीडियोस बनाए जा रहा है, उसने ऑर्गेनिकली इतना अपना ब्रांड बनाया, उसने पहले बिजनेसेस चलाए। आई मे और मे नॉट agree to 100% what Ankur Warikoo says, but I definitely agree to the way he's built his brand. So वो है, जब तक आपको सब लोग नहीं पहचानते तब तक आपको कोई नहीं पहचानता। तो जब तक आप उस पोजीशन पे नहीं पहुंचे हो ना, वीएसएल फनल आपके लिए काम करेगा, ये सपने देखना थोड़ा कम कर दो, आपके लिए अच्छा। वरना मेरा क्या है, प्रोडक्ट आपका है, ब्रांड आपका है, पैसा आपका लग रहा है, पंकज को मिलने वाला है उसका रिटेनरशिप, लेकिन आपको सेल नहीं मिलने वाला है। यस। क्योंकि इसमें मेरा भी एक एक्सपीरियंस रहा है पर्सनल, कि जब मैंने एक्सप्लोर किया है बाकी लोगों को, कि जो एकदम टॉप इंडिया में जो टॉप लोग हैं जो वीएसएल फनल से सक्सेसफुल हो पा रहे हैं, तो अगर मैं भी उनसे प्रोडक्ट बाय करता हूँ बहुत बार, फॉर एग्जांपल हम लोग दीपक कनकराजू का हमेशा बात करते रहते हैं कि अल्फा क्लब हम लोग बाय किए थे या फिर जो भी है, तो मैं उनका भी जर्नी देखता हूँ, तो फिर मुझे याद, मतलब एक्सप्लोर कर रहे थे हम कि कब से इनको फॉलो करें, कि हम कैसे बाय किए इनका प्रोडक्ट। मैंने देखा कि मैं तो 2016 से फॉलो कर रहा हूँ इनको, और 2023 में उनका महंगा वाला प्रोडक्ट बाय किए थे। हालांकि छोटा छोटा प्रोडक्ट भी बीच में बाय किया है बहुत सारा, बट कहने का मतलब एक जर्नी चल रहा है, मतलब अचानक से जाके उनका 1 लाख 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट हम जाके पे नहीं कर दिए, वो हमको पूरा एक जर्नी के थ्रू ले गए।
पहले फ्री कंटेंट दिए, देते गए, फिर बोले 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद लो, फिर जाके 5000 का प्रोडक्ट आते रहता था। बहुत सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज, पेन ड्राइव वगैरह उनका उस समय आता था बहुत सारा। तो फिर उसमें डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भर के देते थे। तो ये सब चलते रहता था। फिर हम जाके वो मास्टरमाइंड में उनका ज्वाइन किया। उसी तरह से बाकी मास्टरमाइंड्स में भी हम थे। तो गोपाल के मास्टरमाइंड में थे पहले हम। उनका भी हम देखे कि उनका भी एक प्रोसेस के थ्रू ले गए थे वो हम लोग को, तब जाके उनका मास्टरमाइंड बाय किए थे। तो वो तो खैर L1 L2 वाला लेवल पे चले गए थे, क्योंकि गोपाल पहले हम लोग 99 रुपीज का कोर्स सेल करते थे, फिर 5000 का, फिर 15000 का था। इस तरह से वो ले आते थे उस समय। बट कहने का मतलब है कि जब भी जो महंगा प्रोडक्ट होता है, तो उसके पीछे ब्रांडिंग का एंगल होता है हमेशा। हम 100% अभी होगा L1 तो। L2 वाले से कंफ्यूजन नहीं कर रहे। मैं कहने का मतलब है लोगों को उस डायरेक्शन में ले जाना है कि ब्रांडिंग हमेशा होता है, कोई भी हाई टिकट प्रोडक्ट रहता है। इनफैक्ट जो और है मार्केट में जो टॉप लेवल सेल करते हैं, तो उनका आप देखो जाके कि उनका ईमेल्स आपको कब से आ रहा है। आपको हम्म हमेशा होगा कि कभी ना कभी आप किसी को भी सब्सक्राइब किए हो, लगता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा हाई टिकट प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबब्ली आप उनको ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके, तभी वो आपको और रिटारगेट कर रहे हैं बार बार एड्स, तब आपको लग रहा है कि वो ब्रांड है, आपके नजर में वो ब्रांड बनते जा रहे हैं। और एक और कंपनी है जिनका हम बाई किए थे हाई टिकट कोर्सेज, तो उनके साथ मेरा एक सेल्स कॉल हुआ था, तो उस समय हम नहीं बाई किए थे, मेरे लिए उस समय वो नए थे। वो लोग समझ जाएंगे, वो इंडिया का टॉप लेवल ब्रांड है, उनका भी मैं स्टूडेंट हूँ। तो जब मैंने उनसे बाई किया था, तो कुछ जनवरी में, आई थिंक 2020 में, उनके साथ मेरा सेल्स कॉल हुआ था, हम नहीं बाई किए थे। मेरे लिए वो नए थे, कॉन्सेप्ट उनका इंटरेस्टिंग लगता था सब कुछ। बट 8-10 महीना बाद मैंने उनका बाई किया, तो उस 8-10 महीना में वो एटलीस्ट मेरे लिए वो ब्रांड बन चुके थे। वो बनते जाते हैं, बढ़ता जाता है आपके दिमाग क्योंकि में उनका वो। सक्सेस स्टोरीज आ रहा है मेरे पास, उनका ईमेल्स आ रहा है, सोशल मीडिया में एड्स दिख रहा है। तो हो सकता है दुनिया में ब्रांड नहीं हो, बट वो मेरे लिए मेरे दिमाग में ब्रांड बन चुके थे। करेक्ट। तो इसी तरह से मतलब, अगर जब भी आपको हाई टिकट बेचना है, तो आपको ब्रांड बनाना जरूरी है। किस हाई लेवल का टिकट, ब्रांडिंग है? डायरेक्टली ऑटोमेटेड सेल्स दोनों। हाँ, हाँ। हाई तो टिकट में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और दूसरा, अगर आपको लो टिकट में भी करना है कंसिस्टेंटली, एक आपको एस्टिमेटेड पैसिव इनकम पता होना चाहिए कि हाँ, हर महीने मुझे इतने लाखों रुपए की इनकम तो मेरे एड्स के थ्रू चलेगी। मैं 3 लाख की एड चलाऊंगा, मैं 8 लाख की रेवेन्यू निकालूंगा। मैं 5 लाख की एड चलाऊंगा तो मैं 15 लाख का रेवेन्यू तो निकाल ही लूंगा, अनलेस एंड अनटिल लीड कॉस्ट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाए। अगर आपको ये लेवल ऑफ क्या बोलते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो उसके लिए पहले आपको मेहनत करके अपने ब्रांड को उतना बड़ा बनाना पड़ेगा। यस, बिकॉज बिना ब्रांड का ये नहीं बिकेगा जितना आसानी से दिखता है। और स्टार्टिंग में बहुत लोगों का सेल होता भी है, कि स्टार्टिंग में आप 2-4 लोगों को सेल कर भी देते होंगे बिना ब्रांड का, लेकिन बस वो स्टार्टिंग में ही रहेगा। क्योंकि बहुत बार, बहुत सारे जगह हम जाते देखते कि ट्रेनर्स कोचेस अपना केस स्टडी लेके घूमते रहते हैं कि देखो हम इतने लोगों का हाई टिकट सेल करवाए। बट वो हाई टिकट बस एक सेल करता है, 2 सेल कर पाता है। उसके बाद वो जाके फिर रुक जाता है। 1-2 सेल इसलिए हो जाता है क्योंकि उनका पहले से फैन फॉलोइंग होगा कहीं पे सोशल मीडिया पे, इधर उधर। बट जब तक वो कंसिस्टेंटली ब्रांड नहीं बना रहा है, नहीं सोशल मीडिया पे कंटेंट नहीं पोस्ट कर रहा है, या फिर जो भी ब्रांडिंग का हम लोग का अलग वीडियो, वहां पे भी जाके आप डिटेल्स में सर्च कर सकते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ये सब कैसे करना है। बट कहने का मतलब, अगर आपको, ठीक जैसा मनीष जी बोले, नॉट जस्ट हाई टिकट, अगर आपको बिजनेस में रहना है, कोई भी बिजनेस में वर्ल्ड का, तो आज के डेट में आपको अपना ब्रांड पे काम करते रहना है। उसी रीजन से मैं भी पर्सनली कोच आई नीड हेल्प के साथ जुड़ा हूँ, और हम लोग मिलकर चालू किए, ताकि ये भी मेरा ब्रांडिंग हो रहा है। ऑफ आज कोर्स। अभी हमको कम लोग जान रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि अभी धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद और लोग जाने, मॉल पे जाए तो हो सक अभी इनफैक्ट होता है मेरे साथ, जो मनीष जी, शायद आपको पहले भी बताए होंगे, जो रेगुलर पॉडकास्ट सुनते हैं, कि लास्ट टाइम हम भोपाल के इवेंट में गए थे, तो वहां पे भी 2-4 लोग मुझे पहचान रहे थे, क्योंकि मेरी उनके साथ इंटरेक्शन हो चुकी थी, तो काइंड ऑफ मेरी भी ब्रांड बन रही है। ऑफ कोर्स। मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत बड़ा ब्रांड हूँ, नहीं, बट चालू हो रहा है, बनूंगा डेफिनेटली धीरे धीरे। तो वो कैसे हो रहा है, जादू से नहीं होगा, धीरे 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 धीरे, स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। लिफ्ट नहीं लगा हुआ, लिफ्ट भी इनफैक्ट हमेशा हम बोलते हैं कि लिफ्ट भी स्टेप बाय स्टेप ही ले जाता है आपको, डायरेक्टली 1 से 10th फ्लोर नहीं ले जाता है। हम्म और यहाँ जब हम MNC में काम करते थे, तो वहां पे तो 15-15 मिनट वेट करना पड़ता था, कब जाएगा लिफ्ट, कब आएगा। खैर वो जाने दीजिए, वो अलग स्टोरी है। हाँ, हाँ। बट ठीक है। अब हम लोग चलते कि पता चल गया हम लोग को किन के साथ प्राइसिंग वगैरह के बारे में। अब हम लोग कुछ डिसएडवांटेजेस का एक बात कर लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किनको नहीं करना चाहिए, या फिर क्या क्या दिक्कतें आती है। मतलब जितना इजी दिखता है कि यार 1 लाख का प्रोडक्ट बेच दो, या फिर हाई टिकट बेच दो, या 1-to-1 बेचो, अपॉइंटमेंट में बेचो, जैसे भी, तो इस सब में कुछ दिक्कतें भी आती है, उतना इजी जर्नी नहीं दिखता है।
और जो लोग, बहुत लोग फेल हो जाते हैं इसमें। फेल हो जाते कहने का मतलब वो मान लेते कि वो फेल हो चुके हैं। हम्म। फेल तो कोई नहीं होता जब तक वो ट्राई करते रहेगा, बट वो मान लेते हैं। आज ही एक मेरी वो थी एक ही हमारे ग्रुप में एक जन पोस्ट की थी, तो वो बोल रही थी कि मैं हाई टिकट से हार मान चुकी हूँ अब। मनीष जी समझ गए। बट वो बोल रही थी हार मान चुकी, तो उन्हीं के साथ मेरा आज शाम को भी कॉल है, तो उनको समझाना पड़ेगा। तो उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, जो एक कोच में होना चाहिए उनमें हर कुछ है। एकदम बढ़िया ट्रेनिंग देती है, वो फिटनेस ट्रेनर है इनफैक्ट। तो वो सबको ट्रेनिंग अच्छा दे रही है, केस स्टडीज बहुत है। 10 साल 15 साल से वो बिजनेस में, ऑफलाइन बिजनेस में हर कुछ कर रही है। बट वो ऑनलाइन, मैं सुबह ही मैसेज की मुझे कि पंकज जी मुझे लगता है कि ये हाई टिकट मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैंने उनको बताया कि क्यों नहीं हो पाएगा। तो वही सारा क्वेश्चन कि क्यों आपको ऐसा लग रहा नहीं हो पाएगा और क्यों पॉसिबल है, आप कहाँ गड़बड़ी कर रहे हो। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते कि डिसएडवांटेजेस, फिर हम उसके बाद सॉल्यूशन पे भी डिस्कस करते रहेंगे। तो मनीष जी, क्या आप इसको लीड करना चाहोगे? पंकज, इसको मैं लीड तो कर लूंगा, लेकिन मैं हाँ। क्या टॉपिक का हेडलाइन बताऊंगा और आप अपनी कहानियां सुनाओगे, क्योंकि ये सारे के सारे डिसएडवांटेजेस जो आए हैं ये हाँ। पंकज के थ्रू आए। मतलब पता है क्या होता है, जैसे अगर आप हमारे रेगुलर व्यू हो तो आपको पता है कि हम एक गूगल डॉक बनाते हैं, उसमें हम अपना एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो हम्म। जैसे ही मैंने लिखा डिसएडवांटेज ऑफ कंसल्टेशन फनल, पंकज सीधा ऐसा रुको, अब मैं बताऊंगा। और एक एक करके कहानियां सुनाना चालू हो गए। ठीक है। तो हम्म। पंकज एक बात बताइए, चलो, हम्म। कंसल्टेशन फनल के लिए टाइम लगता है क्या? टाइम कंसल्टेशन फनल के लिए, उसी में तो टाइम लगता है और किस में टाइम लगता है? इसलिए तो कंसल्टेशन पूछ फनल रहा हूँ। मतलब जैसे कि पहले, नहीं नहीं, अब रुकिए, अब हमको बोलने दीजिए अब। कंसल्टेशन फनल मतलब क्या है, जो हम लोग शुरू में बात की कि एप्लीकेशन लोग भरते, तो लोगों को टाइम लगा पहले तो कि लोगों को एप्लीकेशन भरना पड़ता है। एज अ कोच हम मान के चल रहे कि ये सारा रेफरेंस हम कोच के तौर पे देते कोच हैं। या किसी अब कंसल्टेंट या कोई बाकी आप लोग सर्विस सब प्रोवाइडर, हाँ। सब सब मिलता जुलता चीज है, तो आप लोग अपने लिए लगा लीजिएगा। हाँ। क्योंकि मैं कोचिंग इंडस्ट्री के साथ ज्यादा काम करता हूँ, तो ज्यादा हाँ। इजिली रिलेट कर पाता ठीक हूँ। है। तो मान लीजिए कोई एक फिटनेस कोच है। हम्म। तो अब कंपेयर कर लेते हैं इसको वेबिनार के तौर से, तब इजी रहेगा टाइम को आपको एस्टिमेट करना। हम्म। लोग बोलते, मतलब आप देखे होंगे बहुत सारे ऑडियंस से बात करते कि लोग लोग बोलते होंगे कि वेबिनार करना छोड़ दो, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, कब तक लाइव वेबिनार करोगे, हर हफ्ता वेबिनार में जाना, रेगुलर लाइव 90 मिनट्स, सेम टॉपिक, बोरिंग स्पीच, ये वो। तो लोग जो कंसल्टेशन फनल बेचते हैं वो वेबिनार को पूरा डाउन दिखाते हैं और बोलते हैं कि बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। बट वो ये नहीं बताते कि जो बीएसएल फनल, कंसल्टेशन फनल का जो बात हो रहा है एप्लीकेशन वाला, उसमें कितना टाइम लगता है। वे मतलब वेबिनार कर रहे हो तो आप सप्ताह में एक बार लाइव जा रहे हो और वहां पे सेल कर रहे हो। वेबिनार का पर्पस सेलिंग का। बट अगर अपॉइंटमेंट बेस्ड सेलिंग कर रहे हो, आप लोगों को बुला के सेलिंग कर रहे हो, तो हम आज मनीषी को कॉल पे लेंगे, आज सेल कर देंगे, तो जरूरी नहीं है, वैसा नहीं होता है। कम से कम 10 से 20 लोगों को बुलाना पड़ता है, तब जाके सेल होता है। 5 10 20% होता है, मतलब टिपिकल कन्वर्जन रेट। लोगों का बहुत अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। बट अगर हम एवरेज 10 20% पकड़ ले, 20 भी नहीं, हम 10 ही पकड़ेंगे टू स्टार्ट विथ, क्योंकि लोग बहुत अच्छा नहीं कर पाते स्टार्टिंग में। तो 10 पकड़ते हैं हम, या फिर 20 भी आप पकड़ लोगे, तो 5 लोगों से बात करोगे, 5 घंटा 6 घंटा 10 घंटा, तब जाके एक सेल होता है। वो भी गारंटी नहीं है कि अगर आप 1 लाख का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो पहला कॉल में हो जाएगा, हो सकता है आपको 2 से 3 कॉल करना पड़े उसके साथ। वो थियोरेटिकल बात है, 1 कॉल क्लोज होता है। बट बहुत इजी नहीं होता, होता है सब कुछ है बट बहुत इजी नहीं होता। हर टॉपिक पे आप एक्सेप्शन बाय डिफॉल्ट मान के चलिएगा, हर टॉपिक का एक्सेप्शन होता है। बट कहने का मतलब आप 20 घंटा बात कर रहे हो फिर जाके एक एक क्लोज हो रहा है, वर्सेस वेबिनार में आप 1 घंटे में, छोटा छोटा अमाउंट है बट सेम अमाउंट का ओवरऑल रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो आप 20 लोगों को सेल करके। इनफैक्ट कल परसों ही हम मेल भेजे थे कि वो सिंगिंग वाले जो क्लाइंट है हमारे, वो 2 2 लाख 3 3 लाख का सेल कर रहे हैं एक वेबिनार में। और अगर उनको 1 to 1 सेल करना पड़े, मान लेते 50 50 हजार का प्रोडक्ट है, तो 6 लोगों को सेल करना पड़ेगा, 6 लोगों को सेल करना पड़ेगा। अगर उनका 20% भी कन्वर्जन रेट है, तो 6 into 5 आई थिंक 30 कॉल करना पड़ेगा उनको। 30 कॉल, और मान लेते एक जन के साथ 2 कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले भी बात करते हैं, बाद में भी बात करते हैं। तो 60 घंटा में उनको 3 लाख का रेवेन्यू होगा, वर्सेस यहाँ पे 2 घंटा में उनको 3 लाख का रेवेन्यू हो गया। तो टाइम का तो आप अंदाजा लगा ही लो, इसमें भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं लगता है, बहुत आसान होता है। ठीक है। तो और ये डिसएडवांटेज, वन ऑफ द डिसएडवांटेज है। और
अच्छा मनीष जी वेट कर रहे थे ये हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि ये डिसएडवांटेज है, बट फायदा भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग डिप्रेशन में मत जाइएगा कि शुरू में तो बहुत अच्छा अच्छा बात बताया, अब सिर्फ डिसएडवांटेज क्यों बता रहा है? क्योंकि ये डिसएडवांटेज वाला सेक्शन है, तो हम उस पर फेयर जस्टिस करना चाहते हैं कि डिसएडवांटेज भी होता है। लोग आपको दिखाते इतना एकदम बेस्ट फनल इन द वर्ल्ड है, यही कर लो, इसके अलावा कुछ करो ही मत, दुनिया तो बेकार है, ये है वो है, तो ऐसा नहीं होता है। आई तो होप मतलब मनीष टाइम लगता आपको। है, कहने का मतलब ये है, क्या? मतलब ये है कि टाइम तो लगता है। बिल्कुल लगता है टाइम किसे नहीं लगता? मुझे एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लग गया, तो आपको सेल करने में कितना टाइम लगेगा, आप सोच तो लो। मतलब अगर अगली बार मैं कोई ऐसे किसी भी एड में देखूं कि वेबिनार करना छोड़ दो या हाँ, लोग बोलते हैं इसको कि ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटेड सेल्स फनल। हाँ, ट्रेनिंग ऑटोमेटेड रहता है, तो लोग उसको ट्रेनिंग पे फोकस कर देता है वो मार्केटर, कि ट्रेनिंग ऑटोमेटेड, इसलिए ऑटोमेटेड फनल है। सेल्स कौन कर रहा है? सेल्स। हाँ। भावनाओं को समझो। हाँ, तो सेल्स तो करना ही पड़ता है ना वहां पे भी जाके। अच्छा, हाँ लेकिन चलो ठीक है ना यार, मतलब इतना क्या दिक्कत है आपको पंकज? अगर 10 लोग मीटिंग बुक करते तो 10 लोग आते भी तो हैं, 10 लोगों से आप बात भी तो करते हो, 100% शो ऑफ रेशियो भी तो होता है मीटिंग्स का। नहीं नहीं, 100% कहाँ शो ऑफ होता है, क्या बोल रहे हैं आप? 100% नहीं होता है। अच्छा बोला अरे क्या? आप मतलब 1 बजे आपने एक मीटिंग फिक्स की है, आप सुबह को उठे हो, आप समझ के बैठे हो कि अच्छा आपने उस पर्टिकुलर बंदे या बंदी का आपने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ लिया, समझ में आ गया, आप उसके सोशल मीडिया पे गए ताकि आपको समझ में आए कि उसका ब्रांड कितना बड़ा है, सब बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप सुबह को 1 घंटा देकर बैठे हो, अपना पूरा दिन का स्केड्यूल सेट करके बैठे हो। हम तो आप प्रोफाइल भी पौने, स्टडी किए थे उसका। हाँ हम तो उस यूजर का प्रोफाइल भी स्टडी करके बैठे थे, लिंक्डइन प्रोफाइल की कौन आने हाँ वाला है हाँ ठीक है ना। तो आप मतलब 1 बजे की मीटिंग है तो आप पौने 1 बजे बैठ जाते हो तो शो अप नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? होना ही चाहिए। अच्छा तो मतलब मतलब हम तो अपने जूम खोल के बैठ जाते, सामने वाला आए चाहे नहीं है, ये उस टाइप का बात हो गया। जो हाँ पुराना जमाना में टीचर्स लोग करते थे, स्टूडेंट रहे चाहे नहीं रहे क्लास में, आई डोंट केयर, मैं तो जाके पढ़ा के आऊंगा। जो ईमानदार टीचर होते, तो हम भी ईमानदार हैं, हम जाके बैठ के जूम पे बैठ जाते हैं। हाँ तो 1 घंटे का, 1 से 2 बजे तक, वो आए चाहे नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जूम करते हैं मीटिंग, अपने आप को समझाते, आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर मीटिंग क्लोज कर देते हैं। हाँ तो मतलब ठीक है ना, मतलब 10 लोग में से क्या है ऐसे, एक आध ऐसा नहीं आएगा है ना, ऐसे 9 लोग तो आते होंगे। सब कुछ परफेक्ट होगा तब 9 लोग आएंगे, अगर रियलिस्टिकली बताए तो। बट तो स्टार्टिंग में एवरेज, अगर आप चालू कर रहे हो तो मतलब मान के चलो 10 में से 6 मैक्सिमम आएगा रिमाइंडर देने के बाद। अच्छा सिर्फ 6? हाँ, रिमाइंडर देने के बाद फिर उसको धीरे धीरे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और पूरे बेस्ट ऑप्टिमाइज करने के बाद भी 2-4 लोग तो रहेंगे ही हमेशा। मतलब दुनिया का नियम है, खाली इस फनल में नहीं, आप पंकज है ऑफलाइन भी ना बात कर बहुत लो। अच्छे, पंकज बहुत अच्छे इंसान है। मैं आपको बताता हूँ, शो अप रेशियो होता है 2 या 3 लोगों का। हम्म। 10 लोग आपके साथ मीटिंग बुक करते हैं, 3 लोग भी अगर आपको आके मिल लेना 10 में से, तो आपके नसीब बहुत अच्छे हैं। हाँ, मतलब अगर होता होगा, मतलब मेरे लिए वैसा नहीं हुआ है, मतलब बट हाँ, हाँ इन जनरल होता होगा। इन जनरल ऐसा ही लोग होता कंप्लेन है। करते हैं, लोग बहुत कंप्लेन 100%। करते हैं। बट मैं आपको पंकज के बारे में बताता हूँ, पंकज का फॉलो बहुत स्ट्रांग है। इसके लिए पंकज को समझ में नहीं आता पंकज क्या करेंगे। जैसे ही आपने उनके साथ मीटिंग बुक की, अगर आपकी मीटिंग परसों है ना, तो आपको आज एक रिमाइंडर आएगा, कल एक रिमाइंडर आएगा, और परसों के मीटिंग के दिन पे, मीटिंग के पहले आपको 2 बार रिमाइंडर आएगा। और मैं टीम फोन कॉल करती हूँ, उसको कौन बताएगा? तो ये सारी कहानियां भी होती है। तो हाँ। इसके लिए इनका शो ऑफ रेशो इसके लिए इतना अच्छा है। लोगों का यस। शो ऑफ रेशो 20% एवरेज है। 30% हो यस। जाता है तो लोग ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, मेरा 30% शो ऑफ रेशो है। तो बाकी के 7 लोगों का क्या, जो आपकी मीटिंग बुक करते हैं, आपका टाइम ब्लॉक करते हैं, लेकिन वो आते भी नहीं है। तो समझ लीजिए कितना सीरियसनेस मिसिंग है इस इंडस्ट्री में तो यस। है। एंड मनीष जी, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन भी एक देने वाले थे ना, ये शायद हम हाँ मिस कर दे रहे हैं। तो इसका हाँ सॉल्यूशन तो हो गया, एक रिमाइंडर वगैरह आप बताए। उसके हाँ अलावा एक कॉमन सॉल्यूशन है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हो ना, तो हाँ वो एप्लीकेशन फॉर्म को थोड़ा तगड़ा रखिए, मतलब बहुत इजी मत रखिए लोगों के लिए। पहले मैं ये गलती करता था कि एप्लीकेशन फॉर्म बहुत इजी कर देता था, कि क्या बोलते हैं उसको, सिंगल चेक करने का ऑप्शन, चेक बॉक्स नहीं, हाँ रेडियो बटन लगाता था हाँ कि एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लो कि तुम्हारा इनकम की रेंज क्या है, तुम्हारा नीड क्या है। तो एक एक ऑप्शन लगाता था ताकि लोगों के लिए इजी हो जाए। ये मैं इंटरनेशनल इंटरनेशनल फनल का किसी का सीखा था, बट वो हाँ शायद मुझे समझ में आ गया कि चलो यहाँ पे नहीं काम करेगा। तो फिर हम्म मैंने क्या किया, क्योंकि उस समय मेरा शॉप कम होने लग गया था, मुझे लगा कि ज्यादा एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन तो ज्यादा आने लग गया सेम कॉस्ट पे। मतलब जहां मेरा 1000 रुपया का एक बुकिंग आता था, 300-300 रुपया में बुकिंग आने लग गया। हम्म बट
हुआ क्या फिर, लोग ही नहीं आते थे। जो आप बिल्कुल बात करें, 2-3 ही लोग आते थे एक्चुअल में उस समय। तो फिर मैं, पहले तो आते थे 6-7 लोग, उसके बाद 2-3 लोग आने लग गए। फिर मैंने क्या किया कि एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत हार्ड बना दिया। और मतलब सिंगल ऑप्शन की जगह उनको बोला कि लिख के डिटेल्स बताओ, प्रोफाइल दो अपना सोशल मीडिया का। बहुत सारा क्वेश्चंस पूछने लगा। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद जो मुझे एक चीज यहाँ पे मैं नहीं बता पाया, शायद इसीलिए मेरा एप्लीकेशन हाई होता, शॉप हाई होता था। क्योंकि मान लेते 20 एप्लीकेशन आया मेरे पास, तो 20 में से हम 10 को तो कैंसिल कर देते थे। फिल्ट्रेशन। हाँ, उसके लिए हम बैठते नहीं थे कि वो आएगा कि नहीं आएगा। हाँ। उसको तो हम कैंसिल कर दिए क्योंकि वो सीरियसली नहीं भरा फॉर्म, हटाओ इसको। हम्म। बाकी जो 10 सीरियस है, उनको हम रिमाइंडर वगैरह भेजते थे। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने पहले ही फिल्टर कर लिया। हाँ ठीक है, और फिर फिल्टर में 50% में से, मतलब अगर आपने 20 में से 10 लोगों को तो फिल्टर आउट कर लिया, हाँ। और जो 10 में से आपको 6 मिलते हैं, हम्म। लेकिन आपकी एप्लीकेशन तो 20 की हुई थी। हाँ, उस तरह से फिर उसको 20 में रिमाइंड करते तो आता है। 20 मतलब में से 6 मतलब 10 में से 3। हाँ, उस तरह से आप बोल सकते हो। तकलीफ यही है कि show up ratio on one-to-one consultation calls is also very bad. And हम्म। here I will end up making a comment which people may not like, but that is the ecosystem that we are living in. People in India don't value other people's time. We don't show up on time at most of the places. We are not punctual, and we tend to take other people's time for granted. तो वो आपको इस इंडस्ट्री में भी होने ही वाला है। अगर आपके 100 मीटिंग्स बुक हुई है, तो आप बहुत लकी हो अगर आपकी 30 मीटिंग एक्चुअली 1-to-1 हो भी जाए, मतलब जूम पे भी। यस, तो कहने का मतलब आपको यहाँ पे डिप्रेशन में नहीं जाना है, या फिर मतलब डिप्रेशन गलत वर्ड हो गया, बट हाँ, स्ट्रेस नहीं लेना हाँ। आपको हाँ। कि नहीं आए तो नहीं आए, अरे मैं बिजनेस बंद हो गया। नहीं, आप मान के चलो कि लोग नहीं आते, बहुत बार नहीं भी आएंगे, इट इज नॉर्मल। उस टाइम पे आप कुछ ऐसा एक्टिविटी प्लान करके रखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो अपने लिए मूवी प्लान करके रखता हूँ। नहीं आए तो मेरा मतलब, मैं मूवी को हाफ हाफ आवर के इंटरवल्स में देखता हूँ। मेरे में वो कैपेबिलिटी है, क्या 3 घंटे का मूवी है, आधा आधा घंटा में 6 बार करके देखो। तो लोग नहीं आते तो कोई बात नहीं, मैं मूवी देखूंगा कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, टीम तो आप मेंबर अपना अपने, काम कर ही रहा है। हाँ, तो आप अपने कोपिंग मैकेनिज्म्स को ढूंढ लीजिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना। यस। अच्छा, लेकिन पंकज एक तो बहुत बड़ा ये है ना, यहाँ पे तुम झूठ नहीं बोलना, ठीक है ना। लोग इतना फॉर्म भरते हैं, हम्म। लोग इतना एड देखते हैं, 10 मिनट का पूरा वीडियो सेल्स लेटर देखते हैं। लीड की क्वालिटी तो बहुत अच्छी होती है ना इस फनल में। कौन बोला 10 मिनट का वीडियो सेल्स लेटर देखते हैं? आप डाल दिए तो इसका मतलब देख ही लेंगे क्या? मैं आपको 10 10 पेज का ईमेल भेज दूंगा तो आप देख के आओगे क्या? गारंटी थोड़ी है। मतलब देख के आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते हो, मेरे को कहाँ पता। आप खाली बोल दो कि मैं तो वीडियो देख लिया। क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पूछ लेते, डिड यू वॉच द वीएसएल, इफ नॉट प्लीज वॉच। बोलने में क्या लग रहा है, वो बोल देता है यस आई वॉच। और फिर जब एक्चुअल में कॉल पे आते हैं, वो वापस से सेम क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये एक दिक्कत होता है। और इसका भी वही उपाय है। मतलब उसका जो आंसर्स आता है ना फॉर्म में, तो उसी के हिसाब से मुझे पता चल जाता है वो कैंडिडेट कितना सीरियस है, नहीं है। और इसके लिए भी मैं पर्सनली उनको वीएसएल के लिए पूछता हूँ व्हाट्सएप पे कि वेर यू एबल टू गो थ्रू द वीएसएल। तो वो जनरली लोग ईमानदारी से रिप्लाई कर देता है। नहीं तो हम्म। हम उसको बोलते हैं कि तुम्हारा मीटिंग रीशेड्यूल करेंगे। वरना फिर सेम क्वेश्चंस आके वापस से वो पूछने लग जाता है, फिर वो तो लीड क्वालिटी खराब हो गया ना। तो हम लीड क्वालिटी को फिल्ट्रेट करके अच्छा बना लेते हैं अपने लिए। मतलब ये तो आप क्योंकि इतने धक्के खाए हुए हो, घाट घाट का पानी पिए हुए हो, कुएं कुएं के पानी में नहाए हुए हो, तो आपको पता है। वरना लोगों को तो ऐसा बताया जाता है ना, ऐसा एड्स में, हम्म। ऑटोमेटेड सेल्स, अमेजिंग लीड क्वालिटी, तो ये सब मतलब क्या, ये सब बोलने की बातें है, दिखावा हाँ है। मतलब वो आप प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे तो फिर वो आपको वही लगेगा जो मेरे क्लाइंट बोली थी सुबह। क्लाइंट नहीं, वो जो मेरी फ्रेंड है, काइंड ऑफ फ्रेंड बोल सकते हैं। बहुत दिन से बात हो रहा है तो फिर कि नहीं, हाई टिकट मेरे लिए नहीं है। हाँ, तो मतलब फिर आप समझ लीजिए ये डिसएडवांटेजेस हैं जो आपको प्रिपेयर होकर ही इस फनल को, अगर आपको देखिए, यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। वी आर नॉट अगेंस्ट VSL or consultation funnel in हम्म। at all. For that matter of fact, if I were to do a one-to-one coaching, or if I were to do high ticket coaching, I would only go for consultation funnel. हम्म। I would adapt to it in a very different manner. But I generally just prefer the reason why I do webinars is because I want to have high impact. I want to connect with multiple people. I want to build very strong and very large communities. So that is that. But because we've actually consulted, we have
spoken to, we have connected with, we know so many coaches, we know so many consultants, we know so many agency owners, because of which we know that these are the real issues which nobody talks to you about. So if Yes. you are our follower, if you've been watching our episodes, you know we are absolutely unfiltered. We've spoken about all the negatives of the webinar funnel also. We've spoken about all the negatives of coaching as an industry, agency as an industry. We're just doing this. If you're watching us for the first time, don't think that this is our way of dissing the consultation funnel. We don't do that. We've dissed every industry. This is the reason why we do deep dive episodes. We are just Yes. being absolutely transparent based on our experiences so that you can make an informed choice. ठीक है? So यस we now एंड understood मनीष जी, that. हाँ, बोलिए मनीष बोलिए. सॉरी, एक चीज और यहाँ पे ऐड कर देते इसी टॉपिक पे जो आप बात कर रहे थे, हाँ, जस्ट फॉर क्लैरिटी ऑफ ऑडियंस, कि हम लोग इस फनल का मजाक नहीं उड़ा रहे, उसका प्रूफ आपको दे ही देते हैं लोगों को। ये है कि अगला 3-4 एपिसोड हम लोग इससे रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो हम हाँ, लोग ये फनल के बारे में आप लोग को एडुकेट कर रहे हैं, ताकि अगर आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो, आपको ये correct, चालू करना है, तो आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ दिक्कत आए और कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो। correct. तो वापस से हम लोग अपने सीरियस मोड पे आ जाते हैं। And Pankaj तो इस मॉडल का मजाक उड़ा ही नहीं सकते, because for the last 4 years his entire income has been derived from the consultation funnel. बिल्कुल। Business Muneem, the t-shirt that he is wearing is of his own brand, and the only way Business Muneem gets business is when people book a consultation funnel. But यस, what 100%। happens is, because we've interacted so much, we also know what are the loopholes. That is why I'm just, I'm purposely poking him. You see यस। what do I mean when I say I'm poking him, because I have a few more points to poke him with. यस, ताकि लोगों को वो नहीं लगे, मतलब लोग लोग डायरेक्टली गलत सोचते हैं इसके बारे में। मार्केट ऐसा किया जाता है कि नहीं, वीएसएल फनल या फिर ये कंसल्टेशन फनल बहुत अच्छा है, इंडिया में यही यूज करो, यही यूज करो। तो इसलिए लोग वेबिनार नहीं यूज करते, स्टार्टिंग ही कर लेते इस फनल से। और इस फनल से स्टार्टिंग करते तो फेल हो जाते, और फेल हो जाते तो फिर ऑनलाइन इंडस्ट्री को छोड़ देते कि नहीं, ये सब छोड़ दो, मेरे काम का नहीं है। तो हम लोग दोनों का एडवांटेज बता रहे, तो फिर आप अपने लिए डिसाइड करो कि आपको चालू इससे करना है या फिर उससे करना है ना? लेकिन एक चीज तो है ना यार, मतलब पंकज, यहाँ पे हम्म। तो मतलब पोक, सो येट अनदर पोक. तो अगर आपने कभी सेल्स नहीं किया है, अगर आपको इतना कुछ आता ही नहीं है, तो फिर क्या, एक छोटा सा तो सेल्स स्क्रिप्ट होता है, अगर आप उसको समझ लो तो सेल्स तो बहुत इजी है ना. भले आपके पास नो या लो सेल्स स्किल्स हो, आप मैनेज कर लोगे ना इस सेल्स कंसल्टेशन में. सेल्स के लिए आज तक हम खुद एक अच्छा वो खोज रहे, सेल्स पार्टनर या कोई टीम मेंबर। एक है मेरे टीम मेंबर में ऑलरेडी सेल्स, बट आई एम स्टिल लुकिंग फॉर अ बेटर वन जो और अच्छा कर सके। मैंने सेल्स की ट्रेनिंग ली है बहुत बार, 100% ली है, बट मुझे पता चल गया है सेल्स और मार्केटिंग अलग होता है, बहुत पहले ही पता चल गया था। लोगों को लगता है नहीं, मार्केटर है तो सेल्स करना आना ही चाहिए, तो ये है वो। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं आता है सेल्स, जरूरी नहीं है। लोग बोलते हैं कि नहीं, बिजनेस ओनर को आना चाहिए। नहीं, मेरा अलग मानना है कि हमको नहीं फर्क पड़ता आता है नहीं आता है। मेरे में इनबिल्ट वो क्वालिटी नहीं है कि बहुत अच्छे से लोगों को सेल्स कर सकूं या फिर जो भी है। तो और दूसरा सेल्स का तरीका होता है टोपी पहनाना, तो टोपी मुझे पहनाने आता नहीं है लोगों को। तो मेरे से सेल्स नहीं होता है, टू बी ऑनेस्ट। तो कहने का मतलब, जब मैं यहाँ पे ओपनली बोल रहा हूँ मेरे से सेल्स नहीं होता, तो इसका मतलब ये कि सेल्स इजी नहीं होता है, और सेल्स और मार्केटिंग अलग होता है। मार्केटिंग आपका मार्केटर करता है, वो फिर भी आप सीख के कर लोगे। सेल्स एक, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मेहनत वाला काम है। हो सकता है मैं भी सीख जाऊंगा, बहुत प्रैक्टिस करना है, बट मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आता है। एक इंटरेस्ट का भी बात होता है, वो भी अपना एक स्किल है, तभी तो उसको सेल्स स्किल बोलते हैं। कम्युनिकेशन स्किल है। मुझे इंग्लिश आती है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल पाता हूँ, बट हिंदी में मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता हूँ। तो मार्केटिंग एंड सेल्स का बात करें तो मैं मार्केटिंग अच्छे से कर पाता हूँ, सेल्स नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे नहीं जाना उसमें। और इसी का कंटिन्यूशन करें तो, जो मेरे क्लाइंट्स थे पहले, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आए थे इस फनल के, कि हाई टिकट फनल वाले, उसमें से मैक्सिमम लोग फेल हो गए थे। फेल होने का सिंगल रीजन था, बहुत सारे रीजन था, सिंगल रीजन नहीं होता फेल होने का। बहुत सारे रीजन मैंने सबको बताया भी रीजन, बट एक कॉमन रीजन ये हर कोई में था जो फेल होता है, सेल्स स्किल उनके पास नहीं होता है। और वो सेल्स स्किल सीखना भी नहीं चाहते। वो ऐसा होता है, लोग 3 कॉल 4 कॉल करते हैं और वो बोलते कि ये फनल मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। बाद में पता चलता है कि नहीं, फनल का तो बात ही नहीं, आप तो कॉल ही नहीं किए, 4 ही कॉल किए, सेल्स किए ही नहीं है। और 4 कॉल में अभी तो हम लोग बात कर रहे थे कि 4 कॉल में कहाँ से क्लोजिंग हो जाएगा। 4 कॉल मतलब आपका 25% कन्वर्जन रेशियो है। तो वो तो बड़े बड़े लोगों का होता है ना, जो काफी अच्छे से एक्सपर्ट है इसमें, कर पा रहे हैं।
तब वो जाके 25% इजिली कर लेंगे, 30% इजिली कर लेंगे। बट अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो कम से कम 100-150 कॉल तो करो। 100-150 कॉल करता ही नहीं है लोग, वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा से सेल कर रहा था। या फिर मैं उस ट्रेनर का बात कर लेता हूँ अपने फ्रेंड का, कि उनका क्या था कि वो 15 साल से फिटनेस इंडस्ट्री चला रही है ऑफलाइन। उनका क्लाइंट्स आ रहा है, तो उनको लगता नहीं कि उनके पास सेल्स का प्रॉब्लम है, उनको आता है सेल्स। बट ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस होता है ना मनीष जी, कि ऑफलाइन में हो गया कि आपका ब्रांड बन चुका है ऑलरेडी, वापस से बात करेंगे, ब्रांड ब्रांड ही तो बन गया, तभी तो लोग डायरेक्ट आ रहे हैं आपको पैसा देने। तो इनफैक्ट मेरे विलेज में मेरा एक फोटो स्टूडियो है, वो आई थिंक 30 साल होने वाला है इस बार, उसको 1993 में चालू हुआ था। शायद मेरे 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 ही नाम पे है, मतलब शायद क्या, मतलब शायद आपके नाम पे तो शायद कैसे हुआ? नहीं नहीं, शायद हम ये बोलने वाले थे कि शायद वो 1-1.5 साल के बाद ही चालू हुआ था, मेरे बर्थ के बाद ही। अच्छा तो अच्छा। ऑलमोस्ट 30 साल हो गया है। तो हाँ। उसी के नाम पे तो वो भी एक ब्रांड बन गया, वो लैंडमार्क बन गया उस जगह पे। तो हम्म। ब्रांड तो वैसे ही बनता है ना, बहुत चीजों से ब्रांड बनता है, उसमें वन फैक्टर आता है टाइम का भी। तो जो हम करेक्ट। लोग ऑफलाइन एग्जांपल ले रहे थे, मेरी फ्रेंड का जो जिम ट्रेनर है, तो उनका ऑलरेडी बिजनेस का ब्रांड बना हुआ है ऑफलाइन, तो हम्म। ऑफलाइन उनका इजीली बिकता है। बट ऑनलाइन उनका दिक्कत क्या हो गया था ना, सेल्स सेल्स नहीं कर पा रही थी वो। बट हम्म। उन्होंने सेल्स किया भी नहीं ना, वो उनके पास पेशेंस ही नहीं था। हम्म। तो 3 कॉल की, और जब मैंने एनालाइज किया, ये पॉइंट भी नहीं लिखा है, वो मैं बता देता हूँ। जब मैंने एनालाइज किया कि दिक्कत कहाँ पे आ रहा है, तो एक कॉमन पैटर्न बहुत सारे लोगों में होता है जो फेल हो जाते हैं इसमें, या फिर फेलियर मान लेते हैं अपने आप को, कि उनका वीएसएल जो रिकॉर्डेड ट्रेनिंग है वो रिकॉर्ड होने में 6 महीना लगा। उससे पहले में भी वो कुछ और फनल चला रहे होंगे। तो 1.5-2 साल 3 साल से वो बिजनेस में कोशिश कर रहे हैं, वो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम वाला जो हम लोग डिस्कस किए थे, कि सोच रहे कि ये करे कि वो करे, करते करते चेंज कर रहे हैं। अब ये कंसल्टेशन फनल मॉडल अडेप्ट कर लिए, तो बहुत टाइम लगा दिए वीएसएल को परफेक्ट करने में। अब वीएसएल परफेक्ट करने के बाद लॉन्च हुआ, तो लॉन्च होने के बाद फिर उनका मार्केटर टाइम लिया कि लीड्स अच्छा लाने में, 1.5-2 महीना उनके तरफ से चला गया। तो टोटल उनका 6-8 महीना ऑलरेडी जा चुका है। और फिर उसके बाद उनका 3 सेल्स कॉल हुआ। तो अब उनका कहना है कि ये फलन काम नहीं कर रहा। तो हम बोले कितने टाइम से कर रहे हो? 8 महीना से कर रहे हो। तो बोले नहीं, 8 महीना से आप नहीं कर रहे हो, आप 1 सप्ताह से कर रहे हो। एग्जैक्टली। अब तो अभी चालू ही किए हो, मतलब ये तो उनको हम सुबह वही एग्जांपल लिए कि ये तो वही बात हो गया कि पंकज को एक कॉफी शॉप खोलना है, तो हम बोलेंगे नहीं चल रहा है। और खोल के कितने दिन से बैठे हो? 3 साल से हम लगे हुए इस बिजनेस में, नहीं चल रहा है। 3 साल हम्म। पहले तुम बस वो कोशिश कर रहे थे कि कोई भाड़ा में, आइडिएशन फेज में थे कि भाड़ा में एक रेंट में हम शोरूम खोजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। 2 साल बाद हम लिए, एग्जीक्यूशन किए, फिर ये किए वो किए। एक्चुअल में शॉप तो मेरे 2 महीना पहले ही चालू हुआ है, मुझे छह करेक्ट। महीना 1 साल तो प्रमोट करना पड़ेगा ना। तो करेक्ट। ये चीज होता है, और सेल्स स्किल बहुत इजी नहीं होता है, मतलब जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया, तो ये टोटल बात है। अब उसको घुमा फिरा के लोग अपने हिसाब से समझ लो, जो पॉइंट अच्छा लगे। बोलने की बात सिंपल है कि सेल्स इज अ स्किल दैट विल ओनली कम टू यू विद प्रैक्टिस। यस। बारे में हम आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में और थोड़ा इन डेप्थ बात करने वाले हैं, बिकॉज आवर नेक्स्ट एपिसोड इज ऑन 1-to-1 सेल्स. So if you are liking this episode, make sure that you actually, you know, subscribe and hit the bell icon so that you can get the update of the next episode. But the point is, अगर आप सेल्स में ही अच्छे नहीं हो तो आपके लिए कोई भी मॉडल काम नहीं करेगा, और खास करके कंसल्टेशन मॉडल तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, बिकॉज consultation model is all about facing the customer, looking at them in the eye, understanding the problem, listening to them, making notes, uh, being smart enough or being present enough to understand how does your product solves this particular problem, what is the pain point that they're going through. We're going to talk about all of this in the next episode. But low skills, low sales skills or no sales skills is the reason why people don't sell. And if there is somebody who's going to tell you, oh, I'm going to teach you sales where people will rush into your showroom and will want to buy from you, boss, that happens. But that happens with after years of practice. By that happens after creating a product that is absolutely robust, by understanding your customer better than the customer understands you. How is it that we are actually being able to create these episodes where you're watching our episodes for half an hour, 1 hour, 45 minutes at a stretch? The average view duration on YouTube is what? 2 to 3 minutes. We are already 10 times the average view duration of YouTube. How are we being able to do that? Because we understand you, we understand what challenges you're going through, and we are trying our best to help you overcome those challenges. So
that is exactly what you need to do when you are creating a sales funnel or when you're creating a consultation. यस, एंड मनीष जी, एक चीज और है यहाँ पे कि जो आप बता रहे थे कि सेल्स स्किल होना चाहिए, इसमें एक दिक्कत और है कि 1-to-1 सेल्स में आप 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए से ऊपर का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हाँ हाँ, तो कोई नॉर्मल सेल्स स्किल्स नहीं काम करना है वाला वहां पे। जो पुराना जमाना में चलता था कि स्क्रिप्ट पढ़ के बोलते जाओ, या फिर जो लोग करते हैं कि आपको परेशान कर देते हैं, मतलब जो मेरे साथ लोग करते हैं, बाय करो परेशान नहीं तो करने घर में वाले लोग घुस के सेल मारेंगे। करते ही नहीं है ना, परेशान करने वाले लोग परेशान करते हैं। अच्छा। हाँ, मुझे वो ऐसा लगता है कि वो मेरे घर में घुस के मारेंगे हम नहीं बाय किए तो। नहीं, सेल्स ऐसा नहीं होता। सेल्स हाँ। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इतना नजदीक था पेचेक टू प्रॉफिट को 1 सेकंड के लिए ड्रॉप करके सिर्फ सेल्स को अपना नीश बनाने में, बट ठीक है, आई यस, लव पेचेक टू प्रॉफिट, बट ठीक है, किसी दिन पेचेक टू प्रॉफिट और सेल्स को भी मर्ज कर लेंगे। इफ यू वांट मी टू डू समथिंग अबाउट दैट, गेट इन टच एंड वील सी व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। यस, एंड जिनको नहीं पता है, मनीष जी ऑलरेडी इस फील्ड में एक्सपर्ट है, तो सेल्स के बारे में मनीष जी आप कुछ ट्रेलर बताना चाहेंगे कि एग्जैक्टली आपका क्या एक्सपर्टीज है सेल्स के बारे में, ताकि लोग अगला एपिसोड को एकदम बुक मार्क See, करके रख ले कि। basically, I have done sales which runs into crores and crores of rupees because first of all, I come from a business family. I have managed multiple businesses. I have personally done a lot of, definitely in crores worth of sales by doing one-to-one sales closing by selling products which used to cost about 5 lakhs, 10 lakhs. For me, I do not flinch when I get a high ticket sale. For me, all what I want to do is give me 20 minutes, 30 minutes, depending on the sale of depending on the ticket size of the product. If I like the product and if you give me qualified leads, I have the confidence to sell the product, any product under the sun. So with that sort of confidence, whatever, and I'll tell you something, I'll give you an actual fact. Any sort of sales, one-to-one sales, is just a 6 or a 7-step process. कुछ भी बेचना हो आप बेच सकते हो, and the product can cost 1,000 rupees or it can cost $1 billion. It is still a 7-step process. Of course, a 1,000 rupee sale can be closed in one-to-one sale, one ticket, one meeting. $1 billion will not be sold in one go unless until Elon Musk is talking to some government or something like that. ठीक है ना? But ये सब possible है. Actually, पता है, मुझे ये क्लिप ढूंढना पड़ेगा। मासायोशी सन, जो सॉफ्ट बैंक के जो फाउंडर हैं, वो सऊदी अरेबिया गए थे वहां के क्राउन प्रिंस को मिलने के लिए। उन्होंने 43 मिनट्स में $43 बिलियन का फंड रेज किया था। सो क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया गेव मासायोशी सन $43 बिलियन in a 43-minute meeting. So imagine $1 billion for 1 minute. That's possible when you actually have a product that can be sold. So that is how easy it is. So it's just about how do you get that. इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। बट एक और चीज है पंकज, यार एक सिंपल चीज समझो, अभी मैं आपके साथ पूरा झगड़ा करने वाला हूँ। आपने इतनी मेहनत की, आपने एक VSL बनाया, एड बनाया, आपने अच्छे से पूरा कंसल्टेशन कर लिया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए यार? लोग खरीदते क्यों नहीं है? क्या प्रॉब्लम क्या लोगों को कि आपको सेल करना नहीं आता है? नहीं, कुछ तो मिसिंग है। प्रॉब्लम वही है जो अभी आप दुबई वाला एग्जांपल दे रहे थे, तो उसमें हाँ, मैं सोच रहा था कि मैं जाके क्या बेच के आऊं जिसमें मुझे $1 बिलियन मिलेगा पर मिनट। तो 1 मेरे पास, बिलियन, बी हाँ हाँ, बिलियन। हाँ $1 बिलियन कैपिटल बी, हाँ ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बेचूं जिसमें मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा उतना उतना पर मिनट। तो फिर मुझे लग रहा है कि नहीं, मेरे पास एक तो उतना वर्थ का प्रोडक्ट नहीं है आज के डेट में, करेक्ट और प्रोडक्ट है ही नहीं तो फिर मैं उनको दूंगा क्या फिर? तो कहने करेक्ट का मतलब मेरे पास उनको ऑफर करने के लिए कुछ ऑफर ही नहीं है। ऑफर रहता है तो फिर मैं सोचता कि मैं उन तक पहुंचूं कैसे। दूसरा बात हो गया टारगेट मार्केट, तो मैं उस टारगेट मार्केट तक पहुंच भी नहीं पा रहा हूँ आज के डेट में। हम्म दूसरी बात, मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, ऑफर नहीं है। तो हम्म ऑफर जो होता है वो बहुत बड़ा पार्ट होता है, मतलब खाली ऐसा नहीं कि अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपने केस में ले लेता हूँ। मुझे लोगों को पता है कि अ, लोगों का के पास अगर कोई भी स्किल है तो मैं उस स्किल को मोनेटाइज करने में उनको हेल्प कर सकता हूँ। आज के डेट में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे एजेंसी में जो 5 लाख 10 लाख पर मंथ का प्रॉफिट्स कर रहे हैं रेगुलरली।
बट यही चीज मुझे पता है। बट अगर कोई नए कोच आते हैं मेरे पास जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे पास ये स्किल है, ये ऑफर है, मैं इसको अच्छे वे में प्रेजेंट करके दे सकता हूँ लोगों को कि आई विल हेल्प यू टू रीच टू दिस पर्टिकुलर रेवेन्यू इन लाइक लेट से 12 मंथ स्टेप्स है कि आप मेरे साथ 1 साल तक मेहनत करो, मैं आपको फिर 5 lakhs पर मंथ का इनकम गारंटी कर सकता हूँ, काइंड ऑफ। गारंटी में भी मैं वो लगा देता हूँ कि मतलब ऑफ कोर्स गारंटीड नहीं है, बट गारंटी मीन्स कि लोग अचीव कर रहे हैं, आप भी अचीव कर सकते हो। तो लोग इसी रीजन से मेरे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। बट अगर मेरे पास ये स्किल ही नहीं होता, मैं उसको प्रेजेंट नहीं कर पाता अच्छे से कि मैं क्या दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, किस प्राइस पे दे रहा हूँ, एक अच्छा ऑफर ही नहीं रहेगा, तो नहीं बिकेगा कुछ। मतलब जो वापस हम उनका ही एग्जांपल ले रहे, क्योंकि उनका एग्जांपल बहुत लिए, वो फिटनेस क्लाइंट वाली का, फिटनेस फ्रेंड क्लाइंट जो भी बोल लो, तो उनका क्या है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट वो सही मार्केट पे सही चीज नहीं दे पा रही ऑनलाइन। तो उनका बहुत सारा चीज मिसिंग है, ना कि जस्ट सेल स्किल्स। उनका एक प्रॉपर मार्केट तक नहीं पहुंच पा रही है जहां पे वो उनका वर्थ दे पाए, क्योंकि वो 50,000 रुपए में ट्रेनिंग देना चाह रही है, बट वो उस मार्केट पे नहीं पहुंच पा रही है जो उनको अच्छे से पैसा दे पाए। प्लस उस तरह से वो ऑफर नहीं दे पा रही। इनफैक्ट मुझे पता ही नहीं आज के डेट में उनका ऑफर क्या है, बट ये पता है कि ऑफर अच्छा नहीं है। ऑफर अगर अच्छा रहेगा ऑफर तो पता ही डेफिनेटली नहीं है तो बिकेगा। अपने आप में ऑफर अच्छा नहीं है ना, क्योंकि अगर हाँ, ऑफर पता हो तो ऑटोमेटिकली फिर आप उसको बोल सकते हो कि अच्छा इसको ट्वीक कर। अगर ऑफर ही नहीं पता तो अच्छा ऑफर है ही नहीं। यस। तो ऑफर का बहुत गड़बड़ी है। अब यहाँ पे हम ऑफर को तो अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे ठीक से, क्योंकि ऑफर के लिए तो हम लोग पूरा 2 घंटे का पॉडकास्ट किए थे। तो लोगों को जाके वो ऑफर वाला पॉडकास्ट देखना पड़ेगा कि ऑफर सिर्फ जितना हम बोले उतना नहीं होता है, बट बहुत चीज होता है। बट कहने का मतलब कि ऑफर अच्छा होना जरूरी है, वरना आप पूरा लोगों को ले आए। हम एज अ मेहनत करके मार्केटर, मेहनत करके आपका लीड अच्छा ला दी है, मेरी एजेंसी आपको लीड ला कर दे दे रही है, आपका एप्लीकेशन बुक हो जा रहा है, वहां तक हम कर सकते हैं आपको हेल्प मार्केटिंग करके। आपका एक्सपीरियंस हो चाहे नहीं हो, हम आपको हेल्प कर सकते हैं मार्केटिंग की वजह से। अच्छा अच्छा ऐड दे दिए, अच्छे अच्छे बातें लिख दिए, सब कुछ कर दिए, केस स्टडी क्रिएट कर दिए बनाए, मतलब नहीं होगा तब भी क्रिएट करके हम ला सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में जब आपके सामने 1 to 1 सेल्स हो रहा है, तो आप तो जैसे भी अपना 7 स्टेप वाला जो फॉर्मूला लगा के आप कर लोगे, लेकिन लास्ट में कुछ तो बेचोगे वहां पे। कुछ तो बेचना है आपको, कुछ देने का है ही नहीं, तो फिर आप क्या दोगे उसको? क्यों ये बॉटल, ये कि क्यों ये इसको 50,000 में बेचोगे? कुछ तो होना चाहिए ना फीचर्स। मैं तो, मुझे पता नहीं, 400-500 रुपए का शायद बॉटल होगा, बट कुछ ऑफर हर जगह कहीं ऑफर होता तभी ना हम लोग खुद वेट करते हैं ना। बिग बिलियन डे का ऑफर, अमेजोन प्राइम डे का ऑफर, क्यों लोग एक्साइटेड होते हैं? आम आदमी सब हम लोग एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वहां पे नाम ही है ना कि ऑफर निकलेगा, ऑफर मिलेगा। एंड बोलिए। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, क्योंकि वही बात निकली। वो 500 रुपए की बॉटल को 50,000 रुपए में कैसे बेचोगे? ठीक है, कैसे? आप सिंपल है, बताइए। एकदम सिंपल है। ठीक है, आज आप मुझे बताइए आपके लाइफ में सबसे आपके बिजनेस में, चलो लाइफ बोलूंगा तो फिर कुछ और नहीं नहीं। पिटारा ना खुल जाए। हाँ। आपके बिजनेस में आज आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया क्या है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो? प्रॉब्लम एरिया अभी देखिए, टीम बिल्डिंग तो हम थोड़ा थोड़ा सीखने लग गए। इससे पहले मेरे पास टीम बिल्डिंग का प्रॉब्लम था कि बिजनेस ऑटोमेशन में नहीं चलता, तब थोड़ा थोड़ा मेरे बिना भी चलता है। तुम ज्यादा मूवी देखने का अफोर्ड कर पाते हैं, वॉक भी, हालांकि आजकल वॉक भी कर रहे टाइम निकाल के। एक तो ये हो गया, और प्रॉब्लम का बात करें डायरेक्टली, तो सेल्स का ही बात कर सकते हैं कि सेल्स टीम मेरे पास बहुत अच्छा नहीं है अभी राइट नाउ। ठीक है ना? उसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं बहुत ठीक है, ज्यादा। अगर मैं आपको दुनिया का जो हम्म। भी आपको कोच पसंद हो उसके ठीक है। साथ 1 to 1 टाइम दे दो, हम्म। ठीक है, जो आपको सेल्स सिखाएगा, जो आपको उस सेल्स, जब तक आपकी सेल्स सुधर नहीं जाती है तब तक आपको मेंटोर करेगा, हम्म। तो क्या आप वो बॉटल मुझसे 50,000 रुपए में खरीदोगे? वो बॉटल 50,000 रुपए की है, उसके साथ आपको जो कोच चाहिए उसका मेंटोरशिप फ्री है। बॉटल के साथ जब मैं डायरेक्ट लेंगे, इनवॉइस डायरेक्ट लेंगे बनाऊंगा, तो? हाँ, अगर सिर्फ हमको वो मेंटरशिप चाहिए तो? 5 लाख। ये क्या मजाक है, बट ठीक है। हम हम वही ले लेंगे फिर। बॉटल दे दो, आप बॉटल के नाम पे बेचे तो हमको क्या फर्क पड़ रहा है? The idea is simple. Your offer should solve the problem for your client. People only buy solutions. The हम्म। problem that your
customer was facing. In my case, let's say if Pankaj was my customer, the problem that Pankaj was facing was sales. Okay. My product that I was offering is a bottle. But if I live up to my promise, if I can actually help Pankaj solve his sales related problem, I am still selling that bottle for 50,000 rupees. I'll give you an example. Why do you think these hotels have suites that get sold for 5 lakh rupees a night? Agreed, they would have like very big rooms. Suites would be about what, 2,000, 3,000 square feet. You'll have multiple rooms in it. Your entire family can live in that room, in that suite. But still, it does not justify 5 lakh rupees. I'll tell you why does that entire process get justified for 5 lakh rupees. You'll get meals cooked for you by Michelin star chefs, which is going to come to you on the house. You'll get a butler on the house. You'll get refrigerators full of juices, chocolates, fruits, whatever you can think of. You will probably get the nicest of toiletries in your washrooms, some of the best soaps. The soap in itself will cost you 500,000 rupees. All of this is given. But I'll tell you, anybody who's getting that suite for 5 lakh rupees now does not really care about all of these small things. I'll tell you why do people pay that sort of money. People pay that sort of money for exclusivity. People pay that sort of money for privacy. Because in that hotel, even if there is a 5,000 people convention happening in that same hotel, nobody in that hotel will know that the presidential suite or the most expensive suite is being occupied by president of a country or prime minister of a country or the biggest celeb that you can think of. People pay for that privacy. People pay for that service. People pay for that peace of mind. People pay for that exclusivity. Now you can't put a number to that. Well, obviously they've put a number of 5 lakh rupees per night, but what is over and above your budget for you is actually absolutely affordable for them, because these celebrities, they cannot get that sort of privacy in a 5,000 rupee, 10,000, 15,000 rupee room, because most people can afford that. So that is how offer is created. Exclusivity will get you 4.5 lakh rupees more for a hotel room. Got it. और बॉटल के एग्जांपल पे भी मतलब आपको बेचना था बॉटल का टारगेट आपको फुलफिल करना था, बट आप कुछ और साथ में क्लब करके एक अच्छा ऑफर बना के दे दिए कि मुझे क्या चाहिए. जैसे कि कोई शायद कहीं पे आईफोन का भी एग्जांपल होता था, ये सेल्स में क्लासिक एग्जांपल कि आईफोन को या फिर कोई भी फोन को, नॉर्मल फोन को महंगा में कैसे बेचे, 10 टाइम्स 100 टाइम्स मोर. तो वो बोलते थे कि इस फोन में इतने बड़े बड़े लोगों का कांटेक्ट डिटेल्स है, तुमको पर्सनल एक्सेस मिल जाएगा, उनके साथ बात कर सकते हो. तो अब उसको एक्सेजरेट करके पूरा दिखा दिया कि ये बस एक छोटा सा फोन नहीं है, ये फोन में तुमको बिलियनियर मिलेनियर सबका वो मिल जा रहा है कांटेक्ट, जिसको तुम जब चाहे मैसेज करके उनसे सीख सकते हो, क्योंकि वो मेरे नाम से जाएगा या जो भी है. तो उसके लिए लोग पैसा देते थे. तो यही चीज है, लाइक ऑफर तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है. ऑफर अगर अच्छा नहीं रहेगा, ऑफर प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो फिर नहीं हो पाएगा कुछ भी सेल. चाहे बॉटल के साथ आप वो सेल्स बेचो, चाहे सेल्स के साथ बॉटल बेचो, लेकिन एट द एंड वो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए. और ऑफर कैसे बनाते, तो हम लोग मिलकर वो ऑलरेडी ऑफर का एपिसोड में बहुत डिटेल्स में इसके बारे में पूरा बहुत सारे एग्जांपल्स और भी लिए ये इसके अलावा भी, तो वो आप लोग देख लेना ऑफर वाला एपिसोड. बट ये बात तो है कि मतलब, तो फिर ये जितने भी कोचेस है जो बोलते हैं कि आप 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल करके VSL करके आप बेच सकते हो, तो भले अगर ऑफर नहीं होगा तो भी बेच पाएंगे. ऑफर होगा तो नहीं, तो जो जब बताते हो तो सिर्फ बोलते हैं ना, आप एक ऑटोमेटेड सेल लेटर बना के बेच लोगे, बहुत सारा पैसा कमा लोगे, तो वो लोग ऐसे ही बोल देते हैं हवा में. तो आप बेच के दिखाइए ना हमको 500 का बिना उसका. मतलब ये 50,000 में आप नहीं बेच पाइएगा ना. ये 500 का बॉटल मान लेते हैं, इसको 50,000 में बेचना था, तो आप मुझे कुछ अलग ही चीज चिपकाए ना इसके साथ साथ, तब ना मैं जाके लिया. आप इसको तो 10,000, आप 2,000 में बेच के दे दो. मैं ऑडियंस के साथ बात कर रहा हूँ. तो अगर आपको कोई कोच बता दे ऐसा एक प्रेजेंटेशन में कि मैं आपको बता दूंगा कि आपको एक वीडियो स्क्रिप्ट कैसे करनी है, इस वीडियो स्क्रिप्ट से मैंने करोड़ों रुपए कमाए, वीडियो स्क्रिप्ट के बाद एक बहुत अच्छा ऑफर बनाया, उस ऑफर में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए कस्टमर के, मुझे तो इतना गुस्सा आता है कि मतलब मैंने अभी 2 दिन पहले एक ऐड देखा, लोग अपना इंस्टामोजो का स्क्रीनशॉट दिखा देते रेवेन्यू का. रेवेन्यू हुआ है सपोज 1 करोड़ का,
तो बोलते थे मेरे ये देखो मेरे बिजनेस में मैंने प्रॉफिट किया 1 करोड़ का। मतलब इसका भी मैं, बिकॉज यू आर अ कोच और यू आर अ कोच इन द मेकिंग, लेट मी टेल यू हाउ इजी इट इज टू फैब्रिकेट दैट. You can literally put money from your account to your InstaMojo account and then show it as a reverse sale or a sales that is cancelled. मनीष जी, ये आइडिया अच्छा दिए, बात बाद में बात करते हैं इसके बारे में। बताइए ना, सबके सामने बात करते क्या ही दिक्कत है? नहीं मतलब मैं आपको भेजता हूँ कुछ पैसा, आप हमको भेजिए, हम लोग रिवर्स करते। आप मुझे ये मुझे आइडिया पैसा नहीं पता भेजिए, था। उस मैं पैसा ले लूंगा, उसका गारंटी है वापस आएगा कि नहीं उसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए आपको फिर मुझे एक ऑफर देना पड़ेगा कि मैं अपने, आपने पैसे मुझे दे दिए तो मेरा बैंक अकाउंट का बैलेंस हो गया ना। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज पता चला मुझे। मुझे लगा आप वो बताने जा रहे हो कि उसको वेबसाइट, क्योंकि मैं वेब डेवलपर हूँ, कि वेबसाइट को एडिट करके वहाँ स्क्रीनशॉट वगैरह चिपकाना। बोले ये तो पुराना चीज हो गया, आप नया चीज बताए। सेल्स कैंसिल हो गई, क्या कर सकते हो? बट वो रेवेन्यू चिपकाएंगे हमेशा, कैंसिल होगी उससे मतलब नहीं, वो दिखाओगे आप हाँ, ट्रांजेक्शन क्योंकि हमेशा। इंस्टा मोजो पे तो आपको पैसा आ गया, इंस्टा मोजो ने अपना 2% ले लिया आपसे। ये भी अच्छा है, मतलब लोग रेवेन्यू को प्रॉफिट करके दिखाते थे, ये तो नॉर्मल हो गया है, मतलब लोग जानते हैं इस बारे में। लेकिन इस तरह से भी ये दिखाया जा पूरा सकता है, का मैं खुद पूरा नहीं रेवेन्यू जानता भी हूँ। फैब्रिकेट किया हुआ है, वो भी नहीं समझते हैं लोग। मुझे नहीं पता है। खुद मैं हैरान हूँ इस बात पे। फाइनेंस बैकग्राउंड, बिजनेस बैकग्राउंड, अकाउंटिंग समझ में आती है तो ये सब इजीली समझ में आता है भाई। तो अगर रेवेन्यू को प्रॉफिट करके दिखा रहा है तो मुझे तो तेरे रेवेन्यू पे भी भरोसा नहीं है। अच्छा हाँ, अब मुझे समझ आ रहा है, बड़े बड़े कंपनीज बहुत सारे जो स्कैम वगैरह करते, बुक्स मेंटेन करते, कैसे करते कुछ कुछ। अरे एक सिंपल चीज है, क्यों इतना मगजमारी कर रहे हो? एक दूसरा सॉफ्टवेयर ले लो बिलिंग का, ठीक है? उस बिलिंग हम्म के सॉफ्टवेयर में एक डमी कार्ड का ऑप्शन होता है। हम्म। आपने जो सेल की है वो डमी कार्ड के ऊपर की है, ओ। ठीक है? उस सॉफ्टवेयर पे आप मेरे को 5 करोड़ का सेल दिखा दो, पूरा का पूरा 5 करोड़ का सेल डमी कार्ड के ऊपर हुआ है, और उस अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दो। अब कल से चलेगा मेरा ऐड, हाउ आई मेड हाँ, 100 5 करोड़ करोड़ इन का सेल्स। प्रॉफिट। 100 हाँ, करोड़। 100 करोड़ का जो प्रॉफिट. करना ही है तो बड़े चीज के लिए जल जाएंगे ना। One of the reasons why it is also difficult to sell on consultation calls is because people will not trust you enough. यस। Lack of trust is a very big challenge, and with unfortunate peers like these in our industry, our job is only going to get a little more challenging. But that's perfectly okay for somebody like me, because I anyway don't want easy customers. I want customers who know me, understand me, trust me, want to do business with me, want to be a part of my community. So I'm not complaining about my job becoming more difficult. I am complaining about these beeps who should not be a part of our industry getting away with things like these. So if you find coaches like these, please report their ads. Please downgrade the ads, because that, I really think that should be done. If you actually see a coach selling their ad with a revenue uh, screenshot and saying I have made profits of XYZ amount, please report that, because they are actually misleading their customers. क्या पता उनको खुद नहीं पता होता होगा रेवेन्यू और प्रॉफिट का डिफरेंस। तो फिर बिजनेसमैन कैसे बुलाते हो खुद को, और दूसरे कस्टमर्स को कैसे? वही तो उनका बिजनेस है। नहीं, बट फिर तो तुम चीट कर रहे हो ना। वही तो बिजनेस है उनका। जो हम शुरू में बताए थे कि दो तरह से सेल्स किया जा सकता है। एक टोपी पहना के सेल्स करते हैं तो मुझे वो भी नहीं आता, एक और अच्छे सेल्स वो भी नहीं आता है। तो लोग दूसरा तरीका का सेल्स अडॉप्ट करते होंगे बहुत जन। जो भी है, मैं तो ना करूं, और मैं तो ऐसे लोगों को, अगर मेरा बस चले तो करने भी ना दूं, बट चलो ठीक है, दुकान चल रही है, चलाने दो उसको। से हमारा, तो हमारे दुकान पे थोड़ा दिक्कत पड़ जाता है, क्योंकि फिर लोग बोलते हैं हाउ डू वी ट्रस्ट यू? भाई ट्रस्ट मी बेस्ड ऑन माय कंटेंट, ट्रस्ट मी बस बेस्ड हाँ, ऑन, हाँ, और आपको भी यही करना है मतलब लोगों के लिए। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप जैसे उन लोग पे हम लोग शक कर रहे हैं, तो आप पे भी हो सकता है लोग शक करेंगे, और जो कि नॉर्मल बात है। ऑफ क्योंकि कोर्स आप एक खुद आदमी करोगे सॉल्व उसको। करने आ रहा है अपना प्रॉब्लम। हाँ, मान लेते मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम है, मान हाँ, लेते हैं, तो फिर मुझे चाहिए एक अच्छा डॉक्टर ऑनलाइन, डॉक्टर या फिर कुछ भी। डॉक्टर का तो चलो ठीक है, हम लोग हॉस्पिटल के नाम पे ट्रस्ट करते हैं। बट ठीक है, मुझे मान लेते हैं मुझे सेल्स सीखना है वापस से। तो हम्म, मैं सेल्स उनका जाके सीखूंगा ना, जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे कि बहुत अच्छा कोच है जिनका नाम दे, अब जो मनीष जी मुझे एक ड्रीम दिखा रहे थे कि मैं उनका टाइम दे दूंगा। तो मेरे मन में दो तीन लोग का नाम आया था। एक हम्म, जेरेमी ली माइनर का आया था, फिर एक डैन लॉक का आया था। तो मैं हम्म, इमेजिन कर रहा था कि इनसे सेल्स सीख सकता हूँ। तो क्यों इमेजिनेशन में मेरा उनका नाम आया, उनका रेवेन्यू स्क्रीनशॉट देख के नहीं। वो करते होंगे रेवेन्यू वगैरह, मुझे उनसे नहीं मतलब है। मुझे मतलब था कि उनका कंटेंट से, मैं उनका कंटेंट को फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। तो मुझे
कंटेंट देखकर ही समझ में आ जाता है कि अरे ये कितना, मतलब ये इस तरह से तुम सोचे ही नहीं थे, उनका सोच दिखाने का एंगल, बात करने का एंगल, कंटेंट देखकर ही ट्रस्ट हो जाता है। तो आपको भी वही करना है जो हम लोग भी कर रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं। तो मैं आजकल कस्टमर्स को, मनीष जी, इनफैक्ट सेलिंग का मेरा एक इशू आता था, लोग मुझे भी ट्रस्ट नहीं करते थे, क्योंकि इसी से कंपेयर होता था कि बाकी लोग तो प्रॉमिस करता है ये सिखा देंगे वो सिखा देंगे, तो आप तो प्रॉमिस नहीं कर रहे हो। मैं लोगों को गारंटी नहीं देता हूँ जनरली कि आपको इतना करोड़ का इनकम करवा देंगे, ये वो बोले कि गारंटी दे ही नहीं सकते। तो वो भी एक हम्म सेल्स का इशू था मेरे तरफ से कि लोग देते थे गारंटी, मैं गारंटी कम दे पाता था। तो हम्म फिर मैं बोलता था, आजकल मैं क्या करता हूँ, मैं कोच आई नीड हेल्प का वो लिंक भेज देता हूँ। मैं बोलता हूँ एक काम करो, अभी हम लोग डिस्कस कर लिए 45 मिनट सब कुछ, अब अभी मैं आपको ऑफर नहीं दूंगा, मैं आपको पैसे वगैरह का बात नहीं करूंगा, सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अब आप क्या करो, आप मेरे कोच आई नीड हेल्प पे जाओ, कंटेंट देखो। ये 5 मिनट का कंटेंट नहीं है जो ऐसा रैंडमली ये मतलब प्रिपेयर करके स्क्रिप्टेड वीडियो बना सकते हैं। 2 घंटे तक पूरा स्क्रिप्ट करके यहाँ मूवी नहीं बना रहे, आपको दिख जाएगा एकदम नॉर्मल बात चल रहा है, ये चल रहा है वो चल रहा है। तो आप जाके आप चेक करो कि आप मेरे से रेजोनेट कर पा रहे हो कि नहीं, मेरे थॉट प्रोसेस के साथ रेजोनेट कर पा रहे हो कि नहीं। अगर कर पा रहे हो रेजोनेट, तब हम लोग सेकंड कॉल शेड्यूल करेंगे। वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि मेरा प्राइसिंग वगैरह क्या है, फिर हम लोग बात करेंगे। तो ये कंटेंट वाला स्ट्रेटेजी जो हम लोग ऑडियंस को बता रही है, मैं खुद भी अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। अब जो सेकंड लोग आते हैं सेकंड बार रेजोनेट करके, वो पैसे का तो ध्यान ही नहीं देते। अब वो खाली मेरे से काम करने का सोचते हैं कि कैसे काम कर सकते हैं, पूछते ही नहीं चार्जेस क्या है, वो सेकेंडरी बात है उनके लिए। अब ऐसा करेक्ट। होता है। तो आपको ये कंटेंट बनाने के बाद, ये कंटेंट लाइब्रेरी का लिंक्स भेज देने के बाद, आपको लगता है कि आपके सेल्स कन्वर्जन में एक ईज हुआ है? हाँ हुआ है ना, वही तुम पूरा प्रोसेस बताया ना कि जो नहीं देख कर आता है, जो खुद से नहीं आता है, उनको हम दोबारा फॉलोअप करते ही नहीं है। हम्म मतलब क्योंकि ऑलरेडी मतलब मैं एजेंसी चला रहा हूँ, तो एजेंसी में तो मैं अनलिमिटेड क्लाइंट्स ले नहीं सकता हूँ, लिमिटेड क्लाइंट्स रखता हूँ कि जब एक दो क्लाइंट जाते हैं तब मैं दूसरा क्लाइंट लेने की कोशिश करता हूँ। करेक्ट। स्लो ग्रोथ रखते हैं। तो मुझे वो नहीं है, मतलब एक स्कैरसिटी वाला बात बोलते हैं ना, वो एक्चुअली में मेरा ओवर सब्सक्राइब्ड रहता है। मैं हम्म टीम छोटी है मेरे पास, तो हाँ। जितना हम हैंडल कर पाते उससे ज्यादा क्लाइंट रहता है मेरे पास हमेशा ही, एक दो। हम्म तो बाद में जब हम निकलते क्लाइंट लेने का, तो मुझे मारा मारी नहीं रहता है कि मुझे क्लाइंट चाहिए ही चाहिए। हम्म क्लाइंट को मैं देखता हूँ कि मैं उस क्लाइंट के साथ काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। और अगर क्लाइंट के पास कुछ भी इश्यूज है, तुम बोलते कि जाओ कोच आई नीड हेल्प में, तुम फ्री में कंटेंट कंज्यूम करो, एंजॉय करो। जब माइंडसेट मैच हो जाएगा, जब तुम थोड़े लेवल पे ग्रो कर जाओगे, जब पैसे कमा लोगे, कभी पैसे का भी इशू आता है, तो हम उसको, अब मैं सिखा नहीं हूँ कैसे क्लियर करते ऑब्जेक्शन, क्योंकि मुझे लगता है कि जिसके पास पैसे हैं ही नहीं तो पैसे देगा कैसे। अब मेरा माइंडसेट है वो आप आपसे हम डिस्कस करेंगे, सीखेंगे अगले, सॉरी अगले एपिसोड में सीखेंगे। बट मेरा स्कीम वही रहता है कि ठीक है, अगर आपको लग रहा है पैसे नहीं दे सकते हो, हालांकि आपका बैकग्राउंड देख के मुझे लग रहा है कि नहीं, आप ऑलरेडी 1 लाख का घर में रेंट में रह रहे हो, ये रह रहे हो, और फिर भी आप बोल रहे हो पैसे नहीं दे पाएंगे, फिर हम बोलते हैं कि ठीक है एक काम करो, आप फ्री का कंटेंट कंज्यूम कर लो, मेरे खुद के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, कोच एंड हेल्प के चैनल पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है, उतना भी आप कंज्यूम कर लोगे तो कम से कम आप मेरा सर्विस भी देने लायक एलिजिबल बन जाओगे। तब हम लोग बात कर लेंगे। तो कंटेंट हमेशा, जब से हम कंटेंट बनाना चालू किए तब से हेल्प करा है। इनफैक्ट आजकल तो हम शॉर्ट्स भी बना रहे हैं अपने कंटेंट चैनल पे। सही बात है। कंटेंट मार्केटिंग तो हमको बहुत अच्छा लगता है, मतलब अच्छा तो लगना लग गया है। हाँ, ये मैं बोलना था, अच्छा लगने लग गया है। हाँ बट मतलब अच्छी पहले बात। टाइम नहीं होता था ना, कि हाँ। बहुत सारी चीजें में बिजी रहते थे। अब टीम मेंबर वाला मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मतलब बिजनेस का बहुत सारा एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो टीम हायरिंग का भी इशू था, टीम हायरिंग ये सब का थोड़ा सॉर्ट आउट होने लगा, टाइम मिलने लग गया, तो मैं अब कंटेंट बनाना चालू कर दे रहा हूँ अब। करेक्ट। तो एक और चीज होती है, फाइनल चीज, कि लोग इसके लिए नहीं खरीदते हैं, या सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कंसल्टेशन फनल का, वो हम्म। ये है कि पब्लिक हाई टिकट पे कमिट ही नहीं करना चाहती राइट एट द स्टार्ट। बिल्कुल। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? बिकॉज ये आपने बहुत कॉमनली फेस किया होगा। हाँ मतलब ये आपका क्वेश्चन से पहले ही आंसर दे दिए थे। वही वाला जो एग्जांपल लिया, आप उसी को पकड़ लो कि लोग अमीर है पहले से दिख रहा है, लेकिन वो लोग इस बिजनेस को के लिए गरीब है वो, मतलब हम्म कि रूल ऑफ बिजनेस काइंड ऑफ हो गया वो, कि इस बिजनेस में पैसा लगा रहे तो इसी बिजनेस से पैसा लाना है। तो वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो मे बी वो ट्रस्ट नहीं कर रहे, या फिर इसका दूसरा वर्जन आप दे दो कि कमिट नहीं कर रहे, वो कमिट हम्म नहीं करना चाहते कि पंकज को वो 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए नहीं देना चाहते सेटअप के लिए, हम्म क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट में बहुत लोग चीट कर चुका है, तो मैं इनको करेक्ट। कैसे ट्रस्ट कर लूं। करेक्ट। तो कमिटमेंट नहीं इजी होता है किसी के लिए भी। अगर मैं उनका बात कर लूं, सेकंड एग्जांपल, वो फिटनेस ट्रेनर का, तो वो हम्म
3 मंथ्स का कुछ 50,000 रुपीज शायद चार्ज कर रही है। ओके। तो लोग देते हैं, उनको ऑफलाइन लोग दे रहे हैं, हाँ, हालांकि ऑनलाइन नहीं दे रहे। तो ऑनलाइन इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि ऑनलाइन वो उनको नहीं जानता है, करेक्ट। वो उनका कंटेंट देखकर नहीं आया, वो बस VSL एक वीडियो देखा फिर डायरेक्ट आ गया, तो बहुत ज्यादा नर्चरिंग नहीं हुआ। यही सब वजह से वो उनको ट्रस्ट नहीं करता, या फिर ट्रस्ट नहीं कर रहा है तो ऑफ कोर्स कमिट करेगा ही नहीं। दोनों तो रिलेटेड हो गया ना, पूरा ट्रस्ट करेगा तभी तो वो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं मैम, मैं आपको 50,000 देता हूँ, मुझे तो आप हेल्थ मेरा ठीक करा दो। लेकिन करेक्ट। वो नहीं कमिट करता है, वो आके बोलेगा कि नहीं मुझे 7 डेज का ट्रायल दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो वो छोटा अमाउंट के लिए एक बार चेक करता है कि कैसे मेरे लिए काम करेगा नहीं करेगा। मेरे केस में बात कर ले तो वो मुझे बोलता है कि एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट दे पाओगे क्या लीड जनरेट करके, कि ये हो पाएगा क्या। तो मैं उनके साथ नहीं करता हूँ अभी काम की, नहीं तुम फ्री में ही मेरे चैनल देखकर वो कर लो, बहुत सारा चीज सीख कर तुम खुद के लिए जनरेट कर लो। बट जब मेरे पास कंटेंट वगैरह नहीं था तो फिर ये कमिटमेंट वाला बहुत इशू आता था कि कैसे करे, क्योंकि उस समय मैं दे भी नहीं सकता कंटेंट, में बस बोलता था ठीक है नहीं ट्रस्ट कर सकते तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेल्स कॉल पे चलो। तो वैसे मेरा प्रोसेस होता था। तो ये भी, इसका भी सॉल्यूशन है इनफैक्ट, मतलब ये तो प्रूवन है कि कमिटमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर मैं हम्म। 5,000 का वेबिनार में कोर्स बेचूंगा कि हाउ टू बिकम अ कोच या फिर हाउ टू रन योर फेसबुक एड्स प्रॉपरली, हम्म। तो वो ऑलवेज इजी होगा। 5,000 रुपया देने में लोगों को इज हमेशा ही रहता है, वर्सेस मैं जाके उनको बोलूंगा 1 लाख रुपए दो मैं सिखाऊंगा। तो हर कुछ जो अभी हम लोग ऊपर 6-7 चीज डिस्कस की है, सब कुछ एकदम प्लेस में रहेगा तभी जाके लोग कमिटमेंट करते हैं इतना हाई टिकट का। करेक्ट। ये तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं, एज आई टोल्ड, एज एन अलोंग विद द सॉल्यूशंस, हाँ, सॉल्यूशंस जो हम with लोग दे चुके हैं। solutions. As I mentioned when we started this section, we हाँ don't have a problem with consultation calls as a funnel. As we said, Pankaj's entire income in the last 5 years has been directly or indirectly dependent on consultation. यस But the reason to go deep dive in all the challenges or the disadvantage is because all these disadvantages are real. You will face all of them, not some of them, all of them. So be prepared. People will book appointments and not show up. People will not want to commit. The quality of lead is going to be bad. So just don't get excited by watching somebody, some other coaches ad and saying, oh, I will start a VSL funnel or a consultation funnel and I'll become a multimillionaire in a week or a month. You'll only lose the money that you give to that coach. Work on your offer, create a lot of content, keep watching our content, ask us, interact with us, connect with us online. If you have any questions, then we'll be more than happy to help you in whatever capacity possible. यस। So I think हमने बाकी जो 9th पॉइंट वाला सेक्शन है, हमने सब चीजों के बारे में बात तो कर ली है ना पंकज, कि क्या है ये नहीं, इन अ वे। नाइन्थ वाला हम लोग एक बार उनको रिकैप कर देते हैं, शायद ये सही से अभी हमारा बात नहीं हुआ डायरेक्टली, चलो ठीक है, तो टूटा इसको फूटा आप रीड हुआ करते है, हो कर इस। लेते हैं। हाँ हाँ, प्लीज। तो बेसिकली अभी तो हम लोग पूरा वो डिसएडवांटेज वगैरह बता रहे थे, तो आई एम श्योर बोलने के बाद भी बहुत लोगों को कभी भी लग रहा होगा कि नहीं ये डिसएडवांटेज है। तो हमारा एम है पूरा का पूरा ये फनल नहीं चलाना, ये फनल मत करना इस फनल के अगेंस्ट में। तो नहीं, हम लोग इस फनल के अगेंस्ट में नहीं है, हम लोग बस आपको चैलेंजेस बता रहे। और मैं कोशिश कर रहा था कि जब चैलेंजेस बता रहा था साथ ही साथ में सॉल्यूशन भी बताते जाऊं, करेक्ट। ताकि चैलेंजेस के साथ सॉल्यूशन बता रहे मतलब कि आपको किस चीज का ध्यान रखना है, ना कि इस चीज की वजह से आप रुक जाओ। क्योंकि वेबिनार फनल कैसे करना वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और ये सेकंड टाइम आपको बता रहे कि ये VSL है। तो VSL फनल करो अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो, बट ये सब चीजों का ध्यान रखना हमेशा, वरना फिर आप बोलोगे वर्क नहीं करता है और फिर आपका अपना रीजंस रहेगा। तो करेक्ट। अगर आपको ये करना है तो सब कुछ को सॉल्व करिए। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि इसका कुछ कुछ मॉडिफाइड फनल्स, मतलब जैसे VSL फनल था उसको मॉडिफाई करके हम लोग इंडिया में कंसल्टेशन फनल बनाए, अपॉइंटमेंट फनल बनाए। तो इसी का 3-4 फनल जो हाइब्रिड फनल बोल रहे हैं हम उसको, कि अलग अलग तरीका से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, मतलब कोई भी फनल को मिक्स मैच करके हम लोग फनल बना सकते हैं। तो आज जो हम लोग अगला 5 फनल डिस्कस करने वाले क्विकली आपको बता देंगे, तो वो फनल हम लोग कंसल्टेशन के रिलेटेड बात करने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक होता है ई बुक फनल, ये अभी अभी हम लोग मेन टॉपिक पे नहीं आ रहे, एग्जांपल बता रहे हैं आप लोग को कि जैसे एक होता है ई बुक फनल, एक होता है वेबिनार फनल। तो एक हो गया कि वेबिनार में क्या कर रहे हो आप, एड चला रहे हो, लोग आ रहे हैं आपका वेबिनार पे, और वेबिनार पे आप डायरेक्ट सेल कर रहे हो, नॉर्मल हो गया सिंपल सा वेबिनार फनल। और दूसरा होता है ई बुक फनल, ई बुक डाउनलोड किया फिर आप उसको बाद में कुछ और बेच रहे हो,
बट इस हाइब्रिड फनल क्या हो कि दोनों को मिक्स मैच कर दिया कि पहले ई बुक डाउनलोड करवा लिए, फिर जो जो ई बुक डाउनलोड किया है उन लोग को आप वेबिनार के लिए इनवाइट कर रहे हो। तो उससे क्या होगा कि जो वेबिनार में आने वाला है उनको पता है कि आप ऑथर हो इस ई बुक के, तो वो आपको और सीरियसली लेगा। उसी तरह से इस कंसल्टेशन फनल को और सीरियसली कैसे बनाना है, उसका हम लोग 3-4 तरीका डिस्कस किया है। तो पहला तरीका होता है कि वेबिनार कॉल बुकिंग। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि वीएसएल फनल, कंसल्टेशन फनल का, तो पहला तरीका नॉर्मल वाला है जो हम लोग का होता है, बट इसका एक मॉडिफाइड तरीका होता है। एड से आप लोगों को पहले वेबिनार पे भेजो, लाइव वेबिनार पे, जो 90 मिनट्स टू आवर्स का के आसपास का आप कर सकते हो। उसके बाद जो वेबिनार के एंड तक रुकता है उन्हीं को आप अपना कॉल बुकिंग का लिंक दो, कैलेंडर का लिंक दो। उससे क्या होता है कि इनिशियली क्या होता था आपका नॉर्मल फनल में कि कोई भी आपका 20 मिनट का वीडियो ट्रेनिंग देखा और कॉल बुक करके चला गया, तो उसमें लीड क्वालिटी हो सकता है अच्छा हो सकता है नहीं हो। बट व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, आई वुड हाईली सजेस्ट दिस फनल कि आप पहले वेबिनार कर लो, फिर जो रुका है उन्हीं को लिंक दो। क्या हो रहा है इससे कि जो रुक रहा है उनको लिंक मिल रहा है। मतलब कोई भी रैंडम इंसान को लिंक नहीं मिल रहा है, वो 2 घंटा तक आपसे रेजोनेट कर रहा है, आपका बात को समझ रहा है, आपका टीचिंग वे को समझ रहा है, आपका मेथड को समझ रहा है, हर कुछ सिंक में है, तभी वो 2 घंटा तक बैठा हुआ है। और फुली जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, तो अब 2 घंटा तक बैठे हुए तो मान लीजिए हम लोग हमारा लाइव वेबिनार है फॉर एग्जाम्पल। अब मैं यहाँ पे लिंक दूंगा, तो ये लिंक कोई भी रैंडम इंसान नहीं ले सकता है ना। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि पंकजअग्रवाल.com में जाके विजिट करो, ये होगा वो होगा, तो डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक नहीं डाल रहे, मैं सिर्फ लाइव वेबिनार में लिंक दे रहा हूँ लोगों को, उसके बाद लिंक नहीं मिलेगा उसको जब तक वेबिनार में है लाइव। 2 घंटे का वेबिनार है, तो लास्ट का 5 मिनट्स में वो लिंक दूंगा। जो एकदम रुका हुआ है उसी को मिल रहा है। तो अब क्या होगा, आपके पास एप्लीकेशन कम बुक होगा, क्योंकि बहुत बहुत लोग जैसे मान लेते हैं अगर आप ऑटोमेटिक फनल चलाते जो वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है, वहां से आपके पास डेली का 5 एप्लीकेशन आने वाला था, तो हो सकता है 1 वीक में आपके पास 35 एप्लीकेशन आता। अच्छा क्वालिटी लो क्वालिटी जो भी है डिफरेंट थिंग, 35 एप्लीकेशन आ रहा था। बट वेबिनार फनल में हो सकता है आप सेम अमाउंट का एड चला रहे हो, लोगों को बुला रहे हो सकता है 35 की जगह आपके पास जस्ट 10 एप्लीकेशन आए, क्योंकि बाकी लोग तो उठ के चले जाएंगे। बट जो ये 10 लोग रुकने वाले लास्ट तक, उसका क्वालिटी आप खुद इमेजिन कर लो, क्योंकि वो 2 घंटा तक सुन कर आ रहे हो। इसलिए हम इसको 3 बार एक्सप्लेन किए वेबिनार फनल को। तो आई होप मनीष जी ये वाला क्लियर हो गया कि वेबिनार फनल का हाँ, इंपॉर्टेंस क्या है। correct. Basically, show an ad, get people to your webinar, let them attend everything, let them come up with their questions, let them understand what you're offering, and then at the end, give them an, instead of making a sale, invite them to a proper one-to-one consultation and then understand the situation and then sell your offer, whatever your offer is. यस। और सेकंड सेकंड वाला एक्चुअली वो नंबर 1 था। वो Hmm. वो नॉर्मल कंसल्टेशन फनल हो गया कि ऐड देख रहा है, ऐड देखकर वो साइन अप कर रहा है आपका पेज पे, और फिर 15-20 मिनट का ट्रेनिंग देख रहा है, उसके बाद कॉल बुक कर रहा है, और फिर ये आपका सेल्स कॉल चल रहा है, सेल्स कर रहे हो आप, तो ये That's नॉर्मल फनल हो गया that's जो। basically something that we've discussed throughout the episode until this हाँ, moment. वही Hmm. पूरा कंसल्टेशन फनल हो गया। Correct. थर्ड वेरिएशन हो गया इसका कि वीडियो ट्रेनिंग वेबिनार टू वेबिनार। मतलब पहले एड्स देखा, एड्स के बाद फिर से ऑटोमेटिक ट्रेनिंग देखा। Correct. बट इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको इस बार ऑटोमेटिक ट्रेनिंग देख लिया, अब बोल रहे कि तुम आ जाओ मेरे वेबिनार पे। और वेबिनार पे आने के बाद उनको हम L1 L2 L3 वाला स्कीम लगा रहे हैं कि उसको लो टिकट बेच रहे, फिर धीरे धीरे हाई टिकट टाइप से बेच रहे। तो इसमें क्या मॉडिफिकेशन हुआ, ये वेबिनार फनल ही है, लेकिन वेबिनार पे हम डायरेक्टली एड से वेबिनार पे लोगों को नहीं ले जा रहे। वेबिनार में सिर्फ उन्हीं लोगों को बुला रहे हैं जो मेरा 10-15 मिनट का ट्रेनिंग देख कर आ रहा है। तो जैसे हम फर्स्ट एकदम स्टार्टिंग में बात किए थे ना, ई बुक दे रहे हो तो फिल्ट्रेशन हो जा रहा है, उसी तरह से पहले आप लोगों को एक ट्रेनिंग दिखा रहे हो, एक क्वालिफाई कर रहे हो लोगों को कि अगर वेबिनार अटेंड करना है तो ये ट्रेनिंग देखना पड़ेगा, जो कि पहले Correct. हम लोग क्वालिफाई नहीं कर रहे थे नॉर्मल वेबिनार में। तो इस तरह से वेबिनार पे आपके पास लोग कम आएंगे, वापस से आप जितना लोगों के लिए हार्ड बनाओगे जर्नी, लोग कम आएंगे। बट फायदा ये है कि जो लोग आएंगे वो सीरियस लोग आएंगे हमेशा। तो आप ये कर सकते हो। फोर्थ ऑप्शन हमारा है वेबिनार टू लो टिकट टू कम्युनिटी टू हाई टिकट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अच्छा ये वो नॉर्मल वेबिनार हो गया, टिपिकल वेबिनार का हो गया कि एड से लाइव वेबिनार पे ले जा रहे हैं, लाइव वेबिनार से वही एक लो टिकट प्रोडक्ट बेच रहे हैं,
फिर उसके बाद अपना हाई टिकट प्रोडक्ट बेच सकते हैं, और बीच में ऑफ कोर्स में टिकट प्रोडक्ट L1 L2 L3 नॉर्मल वेबिनार फनल हो गया। करेक्ट। और ये फिफ्थ वाला हो गया हमारा एड्स टू ऑटोमेटेड वेबिनार टू सेल्स, ये जो ओरिजिनल VSL फनल है। तो 5 फनल का हम लोग बात किए, जिसमें से हम लोग एक था बेसिकली, वापस से सीक्वेंस वाइज नहीं बात करें, बेसिकली हम लोग बात की एक फनल के बारे में जो वेबिनार फनल है नॉर्मल, और फिर उसका मॉडिफाइड वर्जन है, उसके वेबिनार के पहले VSL दिखा दो। फिर सेकंड टाइप का हो गया, सेकंड फर्स्ट और सेकंड हो गया, थर्ड फोर्थ क्या हो गया? थर्ड फोर्थ में हमारा ये हो गया कि एक एप्लीकेशन फनल जो नॉर्मल चलता है वीडियो ट्रेनिंग का, बट उसके जगह हम बोल रहे थे कि उसका मॉडिफाइड वर्जन आप कर सकते हो, वेबिनार पे लिंक दे दो लोगों को। और फिफ्थ वाला हमारा लास्ट हो गया कि जो पहले इंटरनेशनल वाला हम लोग पूरा टाइम बात कर रहे थे कि ओरिजिनल जो वेबिनार फनल का पर्पस है कि ऐड देखा, वीडियो ट्रेनिंग लिया, बाय कर लिया हाथों हाथ, कंसल्टेशन का बात नहीं है। तो ये बस मिक्स एंड मैच है। हम लोग जो एक थॉट प्रोसेस आया, जो ये सब चल रही है मार्केट में, वो डाले। इसके साथ साथ आप कुछ भी मिक्स एंड मैच कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बस यही फॉर्मेट है। कहने का मतलब हम लोग आपको सोचने का तरीका दे रहे कि क्या क्या कर सकते हो आप। कुछ भी मिक्स एंड मैच कर लो जो आपके लिए लग रहा है कि हाँ, मतलब अभी तक अगर आप सब एपिसोड देख रहे हो या फिर पूरा एपिसोड भी, ये 22 एपिसोड भी खाली देखे हो, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि वेबिनार फनल कैसे काम करता है, VSL फनल कैसे काम करता है। तो आप अपने हिसाब से इसको ट्विक कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाई टिकट बेचना है कॉल बुक करके, या फिर जरूरी नहीं है सिर्फ लो टिकट बेचना है, लो टिकट बेचने के लिए ये करना है। हर कुछ को मिक्स एंड मैच कर सकते हो। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि आपको रिजल्ट किससे मिल रहा है। यही है मनीष जी। So basically, what we've tried to do over here in this episode is show you the entire universe of consultation funnel, VSL funnels, and more importantly, also try to show you how people are trying to dissuade one funnel to the other. People are telling you, ये funnel बेकार है, webinars मत करो, webinars don't work. Believe me, every funnel works. Every sales process works. It's directly it all boils down to how strong your brand presence is, how strong your uh, recognition in the market is. It all depends on how good you are for your customers. So I'll tell you one simple thing. I'll tell you what my vision looks like. I am running my webinars now on Paycheck to Profit. My personal goal is to eventually give out my level 1 program as an automated webinar. You basically watch my content, you read my email, you see some reel, and you go to a automated VSL page where I talk to you for 15 to 20 minutes, and you understand what have I done in the past 2-3 years, where you understand, oh, but now I'm showing you my vision. You'll see that my YouTube has over 100-200 videos, and I have over, let's say, 50,000 100,000 subscribers on the date of shooting the VSL. You see that I also have a podcast which is this Coach I Need Help, and I also have a podcast on Paycheck to Profit which I'm going to start soon, and I have reached, my total podcast downloads have been over in millions. You basically understand that Manish Ahuja is not run of the mill. Manish Ahuja is not somebody who's just started into this industry yesterday. I today have been in the coaching industry in India for about last 4 or 5 years. The kind of people I've seen, the kind of sales that I've done, all of that will boil down to people actually trusting me and getting into the whole level 1 of Paycheck to Profit. And I'll confess something which I have not even probably told most people. My entire vision is to get level 1 sales from international clients, because that's where the money will start rolling in, and that money can then be used in my community over here in India. Over there, I will then, my vision is to build a global brand, but to do that, I'll have to start somewhere, and to start somewhere, I'll have to put my effort in doing regular webinars on Zoom. I will have to keep giving my time. Anybody who's trying to sell you a VSL funnel and telling you that it is easy is actually trying to take your money. So be very careful. It's your money after all. Do whatever suits you, do whatever feels best to you. Our good wishes are with you. But like we do with every episode, we are just trying to show you the big picture. We are trying to create an absolutely unfiltered view for you so that you decide what is best for you. So yeah, I hope you've gotten all your answers. यस। एंड मनीष जी, बहुत दिन हो गया, कुछ एक बुक रिकमेंड करना चाहोगे कि आप इससे VSL से रिलेटेड, या कोई कोच जिसको लोग फॉलो कर सके इसके बारे में और एक्सप्लोर करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम कोच आई नीड हेल्प?
पॉज कर सकते हो? मैं 1 मिनट में अपनी बुक शेल्फ से वो बुक लेके आता हूँ, एक सेकंड करते पॉज करते कर लो। जी। हाँ, so Pankaj has put me in a spot, but I'm very happy to be in a spot over here because I remembered where I kept this book, and this is one book that I have referred in the past. This, The Ultimate Sales Letter by Dan Kennedy. It's a beautiful book. ये तो बहुत पुराना एडिशन है, ये शायद सेकेंड एडिशन है और अभी फोर्थ एडिशन आ चुका है, बट डजंट मैटर बिकॉज प्रिंसिपल्स will remain the same. And as I had said at the start of the episode, this entire VSL industry started with the ultimate sales letter. So Dan Kennedy has been in this industry right from the time when he used to send those paper mails. He used to write those ultimate sales letters for people to buy products which they did not even know that they needed or wanted. And this is a beautiful book. I'll be sharing the link in the description below. So please go and invest in this beautiful, beautiful book that it is. यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट मनीष जी। और आज हम भी एक बुक लेकर आए हैं क्या क्योंकि बात है, लेकर नहीं आए हो? अगर थोड़ा सा 2 मिनट पहले रिवाइंड कर लो ना तो आपको दिखेगा कि जो पीछे 5 बुक पड़ी है ना उसमें से एक निकाल के दिखा रहे हैं, बट इट्स अ हाँ, ब्यूटीफुल बुक। मतलब हम भी अब लोगों को पता होगा पहले कि ये सब हम बुक्स मेरे मेरे शेल्फ पे ये सब भी नहीं था। अभी हाँ, मनीष इस तरीके वो इंस्पायर होके दो चार करके धीरे धीरे बुक पढ़ना चालू कर रहे हैं, अच्छी जिसमें से बात। ये बहुत पतला सा बुक है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा पहला बुक था, मतलब बहुत पतला है, मतलब लिटरली आप देखोगे कितना है। 125 पेज का है। नहीं नहीं, 110 या 125 का है। 80 पेज का है लगभग। 80 पेज का है, अच्छी बात है। हाँ मतलब 85 या कुछ के आसपास का पेज है, बाकी तो हाँ लास्ट में कुछ को और भी दिया हुआ है। और हाँ 85 पेजेस का है, और जिसमें पांच पांच पेज पहला वाला कंटेंट वगैरह है। हाँ, तो 80 पेज का। इनफैक्ट ये बुक ऐसा बुक था जिसको हम 3 दिन में खत्म कर दिए थे। अच्छी बात है। और लोग मोटा मोटा बुक को हालांकि करते होंगे खत्म, बट हाँ, मेरे लिए मतलब मैं नहीं, उस पैटर्न में चल रहा था। क्या बोल रहे थे? इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू टेक एंड कितने पेजेस आप खत्म करते हो, उसमें से आप क्या सीख के आप जो इम्प्लीमेंट करते हो उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल बुक। द बुक दिखाइए तो सही लोगों को। यस, तो ये बुक का नाम है साइंटिफिक एडवर्टाइजिंग बाय क्लॉड हॉपकिंस। तो कोई डिस्टर्ब कर रहा है, बेल बजा रहा है, बट ठीक है। तो हाँ, ये बुक का खासियत मुझे क्या लगा ना, मैं इसको भी खैर नहीं पढ़ पा रहा था, तो मुझे एक फ्रेंड बताया था कि ऑडियो बुक और ये साथ में पढ़ो, तब मैं जाके करेक्ट। वो कर पाया कंप्लीट। तो चार चार पांच पांच पेज का चैप्टर है, मतलब 10-12 टॉपिक है, और टू द पॉइंट टॉपिक है हर कुछ, और ये भी उसी से रिलेटेड है जो मनीष जी बता रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग का। मतलब इस बुक में स्टार्टिंग का चैप्टर में यही सब गाइड किया हुआ है कि भले अभी सेल्स का टेक्निक्स इवॉल्व हो गया, मार्केटिंग का टेक्निक्स इवॉल्व हो गया है, बट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पूरा का पूरा सेम रहता है 100%। तो एग्जांपल्स वहां का लिए, ओल्ड एग्जांपल्स लिए, बट क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग में हो, आप हमारे ऑडियंस जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में आ चुके हो, तो आप लोग कनेक्ट कर लोगे। मतलब हर चीज का एकदम, मैं आपको चैप्टर 2-4 बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्यूरियोसिटी बढ़ जाए। मतलब सेल्समैनशिप के बारे में जो हेडलाइंस लिखा जाता था पहले, जो न्यूज़लेटर जो भेजते थे घर में, सेल्स लेटर, तो उसका भी हेडलाइन के पीछे क्या साइकोलॉजी है, वो बिल्कुल टू द पॉइंट क्रिस्प वे में बताए थे। स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, और इमेजेस जो मनीष जी हम लोग ऐड चलाते हैं आजकल, फेसबुक ऐड। तो मुझे खुद इसमें एक चीज और सीखने को मिला कि हम लोग कुछ भी इमेज डाल देते हैं क्योंकि वो अच्छा रहता है इमेज, बट यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि इमेज डाल रहे हो, बस कुछ भी डालने के लिए मत डाल दो, इससे बढ़िया मत डालो। डाल रहे हो तो उस इमेज को और वैल्यू ऐड करना चाहिए आपके सेल्स में, तब डालो। करेक्ट। तो हर चीज के बारे में क्या गजब का एक्सप्लेनेशन किया है। तो मैं लोगों को डायरेक्ट बोलूंगा कि मैं समरी नहीं बताऊंगा, आप जाके खुद पढ़ लो इसको, एकदम 100% अच्छा लगेगा आपको। सो ये मेरे तरफ बहुत से ये रिकमेंडेशन था। साइंटिफिक एडवर्टाइजिंग भी बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी पढ़ी हुई है वो। यस। बट इट्स ब्यूटीफुल। सी द आइडिया इज, अगर आपने सिर्फ ये एपिसोड देख के अगर आपने 5 पॉइंट्स नोट किए हैं सबसे पहले, तो प्लीज उस ये एक बात मान लो मेरी, जो भी पॉइंट्स शेयर करते हो उसका इमेज क्लिक करो, सोशल मीडिया पे उसे शेयर करो, पंकज को और मुझे टैग करो, ताकि हमें पता चले कि व्हाट इज वर्किंग फॉर यू। टेल अस व्हाट इज वर्किंग, टेल अस व्हाट इज नॉट वर्किंग। एंड उनको अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया ना, तो ये बुक्स नहीं भी खरीदोगे तो भी आपने जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करो, उससे भी आपको बिजनेस में बहुत फर्क पड़ेगा। और अगर हाँ, यस। अगर आप और जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो दीज बुक्स आर लिटरली आर जेम्स। मतलब हम इतना जो सीखे हुए हैं हम इनसे ही सीखे, दीज आर आवर गुरुज, तो वी आर जस्ट शेयरिंग द नॉलेज दैट वी हैव। यस, इनफैक्ट लाके कोई भी रख सकता है, लाइक 150-200 का तो एक एक बुक आता है। 125 रुपए का बुक ये है। तो 125 का एमआरपी लिखा हुआ है। पता है, तो मतलब बहुत, मैंने ये कम से कम 4 या 5 लोगों को गिफ्ट की हुई बुक है।
अच्छा मुझे भी कर देते बट ठीक है, मैं हाँ जिसको गिफ्ट करता हूँ वापस नहीं मिलता है मुझे बुक, गिफ्ट नहीं मतलब बोरो करके ले जाते हैं बट ठीक है चलिए जो भी है। बट ठीक है, आई होप लोगों को अच्छा लगा होगा पूरा, मुझे मतलब कंक्लूजन तो हम लोग ऑलरेडी पहले दे दिए थे कि बहुत सारा चीज है। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए, प्लीज डू। और अगला एपिसोड के लिए वेट करिए जहाँ पे हम लोग बात करेंगे 1-to-1 सेल्स के बारे में, क्योंकि अभी हम लोग बात किया आज वीएसएल फनल के बारे में, क्या होता है कैसे होता है। तो अब डिजाइन वगैरह तो अब करवा सकते हो कहीं से भी, इम्प्लीमेंटेशन करवा लो, फनल बनवा लो अपना। बट अब मेन स्किल आता है कि उसमें सेल क्या करे। करेक्ट। सेल्स में जितना भी पॉइंट बात किया हम लोग आज की, ये हार्ड होता है वो हार्ड होता है, वो सब भी फिक्स हो जाएगा, आप कर सकते हो अब आज के बाद फिक्स। बट एक्चुअल में जो 1-to-1 बैठ के बात करना है लोगों से, 30 मिनट्स का या 60 मिनट्स का सेल्स कॉल होगा, तो उसको कैसे करे कि वो सेल्स कॉल ना लगे। करेक्ट। लगे नहीं कि वो सेल्स कॉल है, बट आप सेल्स कर रहे हो, इंटेंशन क्लियर कर रहे हो। जैसा कि मनीष जी बोलते हैं कि सेल्स कॉल का या फिर वेबिनार का काम ये होता है कि डिसीजन लेने में लोगों को हेल्प करना है कि यस या नो बोलने में, ये नहीं कि सेल्स करके ही जाना है आज तो मैं तो आया हूँ 90 मिनट्स दे रहा हूँ वेबिनार में, तो सेल करना ही करना है। तो इसमें भी मनीष आई थिंक वही होता होगा ना 1-to-1 में भी। Every sale meeting is all हम्म, about solving a problem and giving an offer. That's it. Communication is it. कम्युनिकेशन में अगर सामने वाले को लगता है कि हाँ, वो तो स्किल है ना, वो एक स्किल इतनी सटल है जिससे आपको समझ में आ जाए यार ये इस बंदे पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, ये प्रोडक्ट से मेरा काम हो जाएगा। और इस जैसे मैंने क्या किया, वो 500 रुपए की बोतल को 50,000 में बेचा कैसे, हम्म, कस्टमर की प्रॉब्लम समझ के उसको एग्जैक्टली वही सॉल्यूशन दिया जिसके लिए वो पैसे दे दे। बिल्कुल। अब क्योंकि ये क्या बोलते हैं एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन अगर ये 1-to-1 सेल हो रहा होता तो मैं एग्जैक्टली उस बंदे का नाम लेता जिससे पंकज वो खरीद लेते। हम्म, कि सपोज ये वाला कोच नहीं, इस इंसान से मैं अभी का अभी बात करूंगा, और ये मैंने बहुत बार किया है। मैं सीधा फोन लगा देता था, हेलो हाँ मैं इनके सामने बैठा हूँ, इनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं इनको बता रहा हूँ कि आपके साथ जो मेरी बात हुई थी ये मीटिंग में, आपने मुझे बताया था कि आप ऐसे सेल्स क्लोज करते हो, क्या आप ये वाली ट्रेनिंग आप पंकज को दे सकते हो क्या, और 4 या 5 मॉक कॉल्स के लिए बैठ जाना, और 2-3 रियल कॉल्स के लिए भी बैठ जाना, ताकि वो पूरा का पूरा सीख जाए। और एक सेकंड ना, रखने के पहले सिर्फ पंकज को हाय बोल दो और बोल दो कि आप ये कर लोगे। पंकज को फोन दे दिया हाथ में, पूरा कॉन्फिडेंस आ गया। फिर वो ही चीज को मैं 500 रुपए की बोतल को 5 लाख का भी बेचूंगा ना, हो सकता है पंकज खरीद ले। मुझे सामने वाले का सिर्फ नस पता होना चाहिए कि हाँ कि ये प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। यस, ये भी काफी अच्छा टेक्निक लगा, इससे भी मुझे याद आ गया कि पहले भी ऐसे मतलब मूवीज में देखते थे कि हाँ ऐसे सेल होता था नहीं कि लोग मैंने बात बहुत करवाते किया थे। है, मैंने बहुत किया है ये। इमीडिएटली आपके साथ बात किया, आपका प्रॉब्लम समझा, सीधा हम्म, ये मेरा पिछला पास्ट कस्टमर है, एक काम करो उसके साथ जरा बात कर लो। ग्रेट ग्रेट। इम्प्रॉम्प्टू कौन ही झूठ निकलवाएगा। तो वही मैं बोल रहा था ना कि वो भी एक स्किल है कि कुछ कुछ ऐसे तो आप भी बोल रहे थे कि ये सीख कर आता है, बट मुझे थोड़ा थोड़ा अभी भी लगता है कि नहीं, कुछ कुछ अपने में भी स्किल्स होना चाहिए बचपन से, एक होता है ना कि गॉड्स गिफ्ट टाइप का, वैसा कुछ होता है क्या सेल्स के लिए। प्रैक्टिस, इसमें प्रैक्टिस और प्रेजेंस ऑफ माइंड है और कॉन्फिडेंस है। तो सब प्रेजेंस प्रैक्टिस ऑफ से माइंड आएगा। कहाँ से आएगा। प्रैक्टिस से सब कुछ प्रैक्टिस से आता है। सेल्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें सीखेंगे आपसे, तो मुझे बहुत ज्यादा इसमें तो ज्ञान है नहीं, तो उसमें मैं आपसे बहुत सारी चीज सीखूंगा। आप पहले लोगों को बता देना कि कैसे स्क्रिप्ट करते, और मैं भी, क्योंकि मुझे भी सेम प्रॉब्लम है तो मुझे पता है, और मेरे क्लाइंट्स को भी सेम प्रॉब्लम होता है, तो मुझे लोगों का दुख पता है कि वो लोग कहाँ कहाँ अटकते हैं, तो वो सब पे बारे में हम लोग पूरा मुझे अगले तो कॉल पे सेल्स में बहुत मजा आता था किसी जमाने में। अगर मैं, मेरे को अगर कोई किलर प्रोडक्ट मिल जाए ना, कि ठीक है दिन में 5 सेल्स मीटिंग मिल जाए, और मतलब सपोज मेरे को 1 लाख 2 लाख रुपए का कमीशन मिल जाए हर सेल के ऊपर, मैं पूरा जिंदगी बैठ के वही करूं। दिन का दो तीन इनफैक्ट लाख फॉर, रुपया तो मैं ऐसे ही कमा लूं। हाँ इंडिया में सेल्स थोड़ा बदनाम है, बट लेकिन बाहर तो लोग पूरा करियर बनाते हैं सेल्स के लिए। इंडिया में भी सेल्स बदनाम नहीं है। तो अगर सपोज आपके पास बहुत हाँ, अच्छे रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स है, बहुत अच्छी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, हम्म, क्यों क्यों गलत होगा। किसी को घर, मतलब लोग का तरीका की वजह से गलत हो जाता है ना कि तो सेल वो तो हर, वो दुनिया में हर जगह पे है। हर पीपल बिजनेस में ना, हेट, हाँ। हाँ पीपल हेट गोइंग टू कार शोरूम्स, बिकॉज उनको पता है कि हम लेकर जाएंगे एक बजट और वो पता नहीं उसका 2x 3x चिपका देगा। आज आपकी बात ले लो, मुझे पता है कि आप एक पर्टिकुलर ईएमआई मैनेज कर पाओगे। सपोज आज जो आप अपना रेंट भरते हो उसका 20-30% अगर मैं आपको ऊपर बोल दूं, सपोज आपका रेंट 10,000 रुपया है, अगर मैं आपको 15,000 रुपए तक का ईएमआई दे दूं, लेकिन
आपको एक बहुत अच्छी सोसाइटी में एक अच्छे व्यू के साथ एक हायर फ्लोर पे एक अपार्टमेंट दे दूं जो आपकी पूरी फैमिली को अकोमोडेट कर ले, आपको रिक्वायरमेंट है सपोज 2 BHK की, मैं आपको 2.5 BHK दे दूं, 1 या 2 पार्किंग स्पेस दे दूं, अपना कंपाउंड में नीचे एक अच्छा गार्डन हो, सपोज आप फिटनेस के लिए जिम हो, स्विमिंग पूल हो, और आपके बजट से मैं 20% ऊपर आपको एक अपार्टमेंट दिखा दूं, कोई चांस ही नहीं है आप नहीं लोगे, आपने मन में खरीद लिया। विजुअलाइज कर रहा था। हाँ, it's all about understanding the need of the customer and offering them a product which is going to solve their problem. That is all what it is. और इसका उल्टा भी मैं इमेजिन कर रहा था, मैं अपना अंडरस्टैंडिंग लगा रहा था कि क्या पता शायद आप ये बोलना चाह रहे हो कि 10,000 से 15,000 के तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी इनकम ही 30,000 रुपया है, आप मुझे आके 40,000 का प्रोडक्ट चिपकाने वाले हो तो कहाँ से कोई लेगा? लेकिन लोग करते हैं मार्केट में, जबरदस्ती कुछ भी चिपकाने की कोशिश करते हैं। मुझे खैर वो एक थोड़ा अलग ही, एक तो उस बंदे का खुद का मॉरल वैल्यूज बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, और दूसरी बात जो इंसान खरीद रहा है ना उसकी भी इनसिक्योरिटी को उसने पकड़ लिया है। अगर आपके जेब में 30,000 है और अगर आप कोई 40,000 रुपए की चीज खरीदने पे मजबूर हो गए हो, तो आपके किसी तो इनसिक्योरिटी को मैंने बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया है। हाँ, और पैसा तो लोग को पता है कि कैसे भी करके लोग लोन लेके इधर उधर से मैनेज कर ही लेंगे पैसा। करेक्ट, तो मेरा वैसा नहीं है भाई, मतलब मुझे अगर आपका, मुझे मैं सेल करता था ना, मैं जब हाई टिकट सेल करता था मुझे पता होता था कि इस बंदे का मंथली इनकम क्या है, इस बंदे का या बंदी का एक्सपेक्टेशन क्या है, इसको कितना फर्क पड़ेगा कि अगर इसने ये प्रोडक्ट खरीद के यूज भी ना किया तो। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, वैसा तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं तो जूम ऑफ करना भूल गया था, ये तो इसको हम लोग बिहाइंड द सीन्स ट्रीट करवा देंगे लोगों को। नहीं, ठीक है ना, अगर कोई एंड तक बैठा हुआ है तो उनको ये सब बोनस कंटेंट मिलना चाहिए। हाँ, मतलब वो ये एक्टिंग कर रहे कि ये बिहाइंड द सीन्स से जूम ऑफ करना भूल गए थे। बट ये ये वापस वो सेल्समैनशिप मुझे नहीं आती है ना, मैं उल्टा, देखो यार पूरा इन्फॉर्मेशन लेके जाओ, पूरा नॉलेज लेके जाओ मेरे से, देखता हूँ यस कितना क्या इम्प्लीमेंट करते हो, उल्टा इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे जो दिक्कत आएगी उसके लिए भी आप कनेक्ट करो। यस, तो ठीक है, थैंक यू ऑल फॉर स्टेइंग Thank you so एंड much. सी यू इन द See you नेक्स्ट guys in एपिसोड। the next episode. 1-to-1 sales. It's going to be amazing. Have a great week. See you next week. Take care. Thank you so much. बाय बाय।